So friends, Namaskar and good day to all viewers. I am Engineer Sandeep Bansal, General Secretary of Council of Engineers and Valuers, once again in front of you with one more exciting and very important presentation on the topic Property Valuation Inspection Checklist, which is specially prepared by CEV Group of experts, which can be used by registered valuers, land and building, as well as by all banking sector valuers, as well as by the valuers working under CBDT under Section 34 AB. So let's move to the topic Property Valuation Inspection Checklist for use by registered valuers, banking valuers, financial sector valuers, and capital gain valuers for land and building asset class. This video will cover measurements, images, site condition, documents, and what are the other requirements for inspection checklist to be checked. So let's move towards the main presentation. So comprehensive property valuation inspection checklist. So friends, if you are going to value a property and to inspect a property, it is very important that every single thing you have noticed, you have observed, you have found out at the site should be clearly noted in your record book so that it can be used as a data while feeding the report for final presentation to the stakeholder. So if a valuer does not follow the valuation checklist during the site visit, the consequences can be professional, legal, financial, and reputational. Below is a structured explanation commonly expected in valuation practice, banking, and regulatory contexts. जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी विजिट करने जाते हैं तो हमेशा याद रखिए वहां पर आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जाते हैं वहां पर बहुत कुछ देखते हैं, देखने के बाद जब आप ऑफिस में आते हैं बीच में एक दो विजिट और हो जाती हैं तो आपके माइंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपके माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो इसलिए क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए और क्या क्या आपको मौके पर चेक करना चाहिए, क्या क्या नोट करना चाहिए, आइए इस वीडियो में अब हम आगे देखते हैं। अगर आप इसको फॉलो प्रॉपरली नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको प्रोफेशनल लॉस हो सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपकी रेपुटेशन भी हर्ट हो सकती है। अगर कोई चीज गलत आपने वहां पर रिपोर्टिंग कर दी और मौके पर कुछ और है और आप फीडिंग करते वक्त आपके माइंड से वो स्किप कर गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये काफी महंगा साबित हो सकता है। तो बिलो इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन कॉमनली एक्सपेक्टेड इन वैल्यूएशन प्रैक्टिस, बैंकिंग and regulatory contexts. Incorrect or misleading valuation. Missing key observations, location, issues, assess, encumbrances, construction quality, deviations from plans. These are the missing key observations. अगर मौके पर ऐसा कुछ है तो आपको नोट जरूर करना चाहिए। अगर लोकेशन इशू है, एसेस प्रॉपरली नहीं है, एनकम्बरेंसेज आपको लग रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सही नहीं है या प्लान से डेविएशन है, ये मिसलीडिंग, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग वैल्यूएशन है। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, रॉन्ग एजम्पशन ड्यू टू कंप्लीट साइट डाटा। अब क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, ये किस किस वजह से हो सकता है, ये आपको यहां पर लिखा है। इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? द वैल्यूएशन रिपोर्ट बिकम अनरिलायबल एंड मे मिसलीड लैंडर्स, इन्वेस्टर्स और कोर्ट। अगर आप कोई भी साइट पर जाते वक्त, जाने के बाद या वापस आने के बाद अगर कोई चीज मिस करते हैं, अगर आप प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड नहीं करते तो आपकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी वो इनकरेक्ट और मिसलीडिंग मानी जाएगी। अगर ये चीजें आप वहां से मिस कर गए, जैसे लोकेशन इश्यूज हैं, एसेस है, एनकम्बरेंसेज हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, डेविएशन फ्रॉम प्लान्स है, ये आपको मौके पर नोट करना चाहिए। अब
That may also result in professional negligence. Failure to follow prescribed checklist may be treated as lack of due diligence. Can be classified as professional misconduct, violates standards such as valuation standards, bank employment guidelines, professional body codes. Example, RICS, IBBI, Local Valuation Council, or of your own RVO of which you are a member. So इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन बाय प्रोफेशनल बॉडीज. अगर आपकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस पाई जाती है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस आपको रिजल्ट करती है, तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है. लीगल लायबिलिटी. These things can also result in legal liability. What type of legal liability? Valuer can be held liable for damages or losses suffered by clients or banks. Possibility of civil lawsuits, claim for compensation, court scrutiny of valuation methodologies. तो इसका impact क्या होगा? What will be the impact? Financial penalties and legal expenses. You may suffer financial penalties may be imposed on you, and you may also be liable for legal expenses to save you against such lawsuits. Now, बैंक ब्लैकलिस्टिंग, बैंक और क्लाइंट्स ब्लैकलिस्टिंग. अगर आप प्रॉपरली साइट पर एब्जॉर्व नहीं करते और आपकी रिपोर्ट गलत पाई जाती है और या गलत आप फीडिंग कर देते हैं, तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? बैंक आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू चेकलिस्ट्स. Non-compliance may result in removal from approved valuer panel, cancellation of assignments, loss of future work. आपको बैंक के पैनल से निकाला जा सकता है, आगे असाइनमेंट आपको देने बंद किए जा सकते हैं, और कैंसिलेशन ऑफ असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है ये भी कैंसिल किया जा सकता है, या एग्जिस्टिंग कोई आपके पास असाइनमेंट है वो भी कैंसिल किया जा सकता है. तो लॉस ऑफ इनकम एंड प्रोफेशनल स्टैंडिंग. तो आपकी अगर रिपोर्टिंग गलत हो जाती है तो लॉस ऑफ इनकम एंड प्रोफेशनल स्टैंडिंग आपकी मुश्किल में आ जाती है. रेगुलेटरी एक्शन. अगर आपकी रिपोर्टिंग गलत है तो रेगुलेटरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज में सस्पेंड और कैंसल वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन, impose fines, issue warning to और सेंसर्स. या तो आपको वार्निंग दी जा सकती है, या आपके ऊपर सेंसर लगाया जा सकता है, या फिर इम्पोज फाइन किया जा सकता है, या आपकी सस्पेंड या आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है एज अ वैल्यूअर. इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? टेम्परेरी और परमानेंट इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस एज अ वैल्यूअर. ऑडिट एंड कॉम्प्लायंस इश्यूज. अगर आप साइट पर प्रॉपर आप उसकी डाटा कलेक्ट करने में गलती हो जाती है और वो रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता प्रॉपर चीज, तो आपको ऑडिट और दूसरे कंप्लायंसेस इश्यूज हो सकते हैं, दूसरे कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं. वैल्यूएशन रिपोर्ट में फेल इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स. साइट विजिट discrepancies may be detected later. Valuer may be asked to justify omissions. अगर आपने कोई गलती कर दी है, कोई चीज ओमिट कर दी है, तो आपसे जस्टिफिकेशन मांगी जा सकती है. आपसे डिस्क्रिपेंसीज जो कि लेटर डेट में पता चलेंगी वो आपसे मांगी जा सकती है, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में आपको मांगा जा सकता है. इंक्रीज स्क्रूटनी एंड लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी. इससे आपकी स्क्रूटनी बढ़ जाएगी आपके रिपोर्ट्स की, और आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी. इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन रेपुटेशनल डैमेज, लॉस ऑफ ट्रस्ट अमंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, legal professionals, negative professional references, which will impact in long-term harm to career growth. Also, ethical consequences. There will be some ethical consequences also, bunch of ethical duties such as objectivity, professional competence, and due care, which will impact on questioning of professional integrity. तो अगर आप डाटा प्रॉपरली नहीं कलेक्ट कर पाते, या डाटा का आपके पास नहीं है प्रॉपरली साइट पर, आप प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं बनाते, तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस सारे फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट में गलत हो गया तो. इन शॉर्ट, फेलियर टू फॉलो द वैल्यूएशन चेकलिस्ट ड्यूरिंग द साइट विजिट इज अ सीरियस लैप्स.
It can lead to wrong valuation, legal action, professional penalties, loss of clients, and damage to reputation. The checklist exists to protect both the valuer and the stakeholders. So, to prepare a checklist during site visit is very, very important. And so, let's come to the point. What are the main points of the checklist to be noted at the time of inspection? Comprehensive property valuation inspection checklist by the use of registered valuers, banking valuers, CBDT valuers, and all valuers working in the ecosystem for land and building. So there are 30 points from A to T. We will discuss each one by one. What are the main points to be observed at the time of site visit? A, pre-inspection preparation. Before going to visit the site, you need to prepare yourself for pre-inspection purposes. What are these? Number one, instruction and scope. You need to study the instructions and scope of the work. Valuation purpose. वैल्यूएशन किस पर्पस के लिए है? सेल के लिए है, मॉर्गेज के लिए है, आईबीसी पर्पसेस के लिए है, बैलेंस शीट्स के लिए है, टैक्सेशन के लिए है, लिटिगेशन के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है, रेंट फिक्सेशन के लिए है. देयर आर सो मेनी अदर पर्पसेस आल्सो. क्लाइंट डिटेल्स एंड एंगेजमेंट लेटर. आपको सबसे पहले क्लाइंट की डिटेल्स कलेक्ट करनी है और साथ में आपको एक एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट से लेना है. दैट इज द प्री इंस्पेक्शन प्रिपरेशन. वैल्यूएशन डेट, इफेक्टिव डेट. आपको ये पता होना चाहिए आपको इफेक्टिव डेट कौन सी देनी है, वैल्यूएशन किस डेट के लिए कराई जा रही है. एसेट टाइप क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी. एप्लीकेबल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स. आपको वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कौन से आपको फॉलो करने हैं वो आपको पता होना चाहिए. आईबीबीआई स्टैंडर्ड है, आईबीएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, या फेयर वैल्यू है. आपको इंस्पेक्शन पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको कौन से वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे. ना पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड एंड वेरीफाइड प्री विजिट. ये सब आपको प्री विजिट करने से पहले ही पता होना चाहिए. क्या 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 आपके पास होना चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं? टाइटल डीड, सेल डीड, कन्वेंस डीड. इनमें से जो भी अवेलेबल है, जो उसके पास है, वो आपको कलेक्ट करनी है. मदर डीड मिनिमम 30 ईयर्स और एज एप्लीकेबल. आपको मदर डीड उससे लेनी है जिससे उसने आगे कंटिन्यूटी में रजिस्ट्री कराई हुई है. एटलीस्ट आपको 30 साल का रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए. एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स आपको लेने चाहिए. अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लेने हैं. ये आपको डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड है. क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है. आपको साइट पर जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन से एप्लीकेबल है वो आप ले सकते हैं, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको ओमिट कर सकते हैं. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर बिल्डिंग है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको लेना है. लैंड यूज एंड जोनिंग सर्टिफिकेट्स लेने हैं. प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स लेनी है. यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सीवरेज के आपके बिल वहां पर उसके पास कौन कौन से हैं और क्या क्या उसने पे किए हुए हैं, क्या क्या पेंडेंसी है, ये आपको लेना है. लीज डीड, अगर प्रॉपर्टी लीज पर है तो आपको लीज डीड लेनी है. रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट लेना है, अगर टेनेंटेड है तो. अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं. अगर सोसाइटी के अंडर ये प्रॉपर्टी आती है, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आती है या किसी एसोसिएशन के अंडर आपको ये एरिया फॉल करता है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं. प्रीवियस वैल्यूएशन रिपोर्ट सिर्फ है नहीं. इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो या फिर किसी और पर्पस के लिए और पहले कोई वैल्यूएशन हो चुकी है इस प्रॉपर्टी की तो वो भी आपको कलेक्ट करना है. दीज आर द प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट. आपको जाने से पहले आपको क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको कलेक्ट करने चाहिए, ये आपको यहाँ से पूरा का पूरा पूरी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी. क्या क्या डॉक्यूमेंट, इसके अलावा भी नो डाउट इसके अलावा भी काफी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो पर्पस टू पर्पस या प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी कर सकते हैं. Now we will move to point number B, जर्नल साइट आइडेंटिफिकेशन. अब जब आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, प्री इंस्पेक्शन आपका हो गया, तो जर्नल साइट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है
Point number 3 is location verification. Exact postal address, survey number, खसरा number and plot number. Municipal और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मैचिंग है या नहीं है, ये आपको चेक करना है. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको रिकॉर्ड करने हैं बाय गूगल मैपिंग से. गूगल मैप रेफरेंस सेव, आपको गूगल मैप से आपको रेफरेंस आपको सेव करना है अपने रिकॉर्ड के अंदर कि आप कहां पर गए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपने देखी है. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, म्युनिसिपल और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, सर्वे नंबर, खसरा नंबर एंड प्लॉट नंबर क्या है, और एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस क्या है. ये आपको लोकेशन में आपको वेरिफिकेशन करनी है. एक इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने हमारी वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है. लोकेशन लोकेशन लोकेशन, 3 types of location you have to verify. You can visit our official YouTube channel and take the advantage of viewing that video. That is very, very important for every valuer. Location, location, location. Now, point number 4, approach and accessibility. आपको जब जनरल साइट आइडेंटिफिकेशन के वक्त आपको अप्रोच एंड एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है उस प्रॉपर्टी की. रोड विड्थ क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है और एस्टिमेटेड क्या है. रोड विड्थ इस वक्त क्या है और एस्टिमेटेड क्या है, और कल को एक्सपेंशन होनी है तो कितनी हो सकती है. टाइप ऑफ रोड्स, रोड किस तरह की है, कच्चा है, बिटुमिनस है या कंक्रीट की है या किसी और तरह की है. इंटरनल एसेस रोड कंडीशन, अगर अंदर की तरफ प्लॉट है तो इंटरनल रोड्स किस तरह की हैं और उसका एसेस किस तरह का है. अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है. देन प्रॉक्सिमिटी टू हाईवेज और आर्टीरियल रोड्स उसमें कुछ है या नहीं है, हाईवे से कनेक्शन कुछ अवेलेबिलिटी है, प्रॉक्सिमिटी है या नहीं है, ये आपको जनरल साइट आइडेंटिफिकेशन में लेना है. नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर सी, लैंड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट. अब लैंड की इंस्पेक्शन करते वक्त आपको क्या क्या चेक करना है, वेदर वो खाली प्लॉट है या बिल्टअप प्लॉट है या कंस्ट्रक्शन के लिए है. लैंड तो आपको प्रॉपर्टी की वेरीफाई करनी ही पड़ेगी, लैंड तो आपको चेक करनी ही पड़ेगी और लैंड की वैल्यू भी करनी ही पड़ेगी. तो लैंड की वैल्यू को चेक करते वक्त क्या क्या चीजें हैं, लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं. प्लॉट शेप, रेगुलर है और इरेगुलर है, ये आपको चेक करना है. प्लॉट की शेप किस तरह की है. प्लॉट डायमेंशंस वेरीफाइड ऑन साइट, प्लॉट की डायमेंशन आपको वेरीफाई करनी है और उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना है, या आपको अप्रूव्ड प्लान है तो उसके साथ मैच करना है. एरिया एज पर डॉक्यूमेंट्स वर्सेस एक्चुअल. एज पर डॉक्यूमेंट जो एरिया आपने देखा है और एक्चुअल में अगर कोई फर्क है, कोई डेविएशन है, तो आपको वो नोट करना है और वो चेक करना है. डॉक्यूमेंट्स में क्या है और एक्चुअल में क्या है, दोनों चीजें आपको ऑन रिकॉर्ड आपको चेकलिस्ट में लिखनी है. टोपोग्राफिकल लेवल है, स्लोपिंग है, अनइवन है, तो ये भी आपको चेक करना है. सॉइल कंडीशंस आपको चेक करनी है. सॉइल कंडीशंस आपको चेक करनी है. विजुअल असेसमेंट आपको देखना है सॉइल के ऊपर क्या है. सॉइल सर्वे नहीं करना है, लेकिन सॉइल कंडीशन आपको विजुअल असेसमेंट से चेक करना है वेदर ये प्रॉपरली है या नहीं. टोपोग्राफी आपको चेक करनी है, जैसे पहले पॉइंट में बताया, लेवल है, स्लोपिंग है या अनइवन है, ये आपको चेक करना है. ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वहां पर ड्रेनेज कोई पानी की या भराई की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ड्यूरिंग रेनी सीजन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ड्रेनेज ब्लॉक की, तो ये भी आपको चेक करना है. देन point number 6, you need to check boundaries and encroachments. Boundaries and encroachments. फिजिकल बाउंड्री डिमार्केशन आपको चेक करनी है, प्रॉपरली डिमार्केटेड है या नहीं है. कंपाउंड वॉल और फेंसिंग है या नहीं है. बाउंड्री मैच विद डॉक्यूमेंट्स, बाउंड्री जो है डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है. एनी एंक्रोचमेंट ऑब्जर्व, अगर आपको लगता है कोई एंक्रोचमेंट उस प्रॉपर्टी ने आगे की हुई है गवर्नमेंट लैंड पर या नेबरिंग लैंड पर या नेबरिंग प्रॉपर्टी पर, वो आपको चेक करना है. और राइट ऑफ वे या ईजमेंट का कोई इश्यू तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी में से किसी दूसरे का आदमी को रास्ता तो नहीं दिया हुआ, या ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी के रास्ते के थ्रू तो नहीं आती है. तो राइट ऑफ वे या ईजमेंट तो ये आदमी एंजॉय नहीं कर रहा है या किसी दूसरे को एंजॉय तो नहीं करने दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी से, ये भी आपको नोट करना है. बाउंड्रीज एंड एंक्रोचमेंट के अंदर ये पॉइंट आता है. Now, point number 7, what to be noted at the time of site inspection. Land use and development controls. What to be noted in this point
Number 7, permissible land use, FSI and FAR applicable, ground coverage limits, height restrictions, setback compliances, coastal/green/eco-sensitive restrictions if any. आपको परमिसिबल लैंड यूज देखना है और उसके हिसाब से कोई वायलेशन तो नहीं की हुई है। एफएसआई और एफआईआर एप्लीकेबल क्या है और यहाँ पर मौके पर क्या आपने मेजर किया है, ये भी आपको नोट करना है। ग्राउंड कवरेज की कोई लिमिट तो नहीं है, अगर लिमिट है तो उसने उसको वायलेट तो नहीं किया है। हाइट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कुछ एरियाज में हाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे एयरपोर्ट के पास या सी शोर के पास या कुछ स्पेशल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके आसपास हाइट रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो उसने वायलेट नहीं की है। रोड के ऊपर सेटबैक कॉम्प्लायंस है या नहीं है, ये तो नहीं कुछ वायलेशन है, या कोस्टल या ग्रीन या इको सेंसिटिव कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई कोस्टल एरिया में तो नहीं है, या ग्रीन एरिया के अंदर कोई ग्रीन वायलेशन तो नहीं है, ग्रीन इकोसिस्टम के अंदर। नाउ पॉइंट नंबर डी, building inspection checklist. Till now we have studied land inspection checklist. Now we will consider building inspection checklist. What to be noted at the time of site inspection? जनरल बिल्डिंग डिटेल्स, आपको बिल्डिंग में क्या क्या चीज देखनी है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह का है, आरसीसी का है, लोड बेरिंग है, स्टील है या किसी और तरह का है, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, अप्रूव्ड कितने हैं और एग्जिस्टिंग कितने हैं, अगर ऐसा है अप्रूव्ड में कम या ज्यादा है और एग्जिस्टिंग में उसने अप्रूव्ड से ज्यादा बना लिए हैं तो आपको नोट करना है। कोई वायलेशन तो नहीं है। ऑक्यूपेंसी स्टेटस क्या है, सेल्फ है, टेनेंटेड है या वैकेंट है, ये आपको नोट करना है। ऑक्यूपेंसी किस तरह की है, यूसेज रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मिक्स्ड, किस तरह का यूसेज है, ये जनरल बिल्डिंग डिटेल्स में आएगा। मेजरमेंट एंड लेआउट, प्लिंथ एरिया मेजर आपने किया है, कारपेट एरिया मेजर करना है, सुपर बिल्टअप एरिया इफ एप्लीकेबल आपको मेजर करना है। अगर सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर रजिस्ट्री हुई है तो सुपर बिल्टअप एरिया आपको नोट करना है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन। फ्लोर वाइज एरिया ब्रेकअप आपको देना है, अगर डिफरेंट फ्लोर्स पर प्रॉपर्टी बनी हुई है तो फ्लोर वाइज आपका ब्रेकअप क्या है एरिया का। इंटरनल लेआउट कंफर्मिटी, इंटरनल लेआउट का क्या क्या बना हुआ है वो आपको कंफर्म करना है एज पर अप्रूव्ड प्लान। नाउ स्ट्रक्चरल कंडीशन, क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चरली वो प्रॉपर्टी की कंडीशन है वो आपको नोट करना है। उसमें क्या क्या नोट करना है, फाउंडेशन डिस्ट्रेस साइंस, कोई फाउंडेशन में कोई आपको सैगिंग वगैरह या कोई डिस्ट्रेस प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। क्रैक्स इन बीम्स और कॉलम्स, कॉलम या बीम में कोई क्रैक्स तो नजर नहीं आ रहे हैं। स्लैब डिफ्लेक्शन तो नहीं है, कहीं पर स्लैब डिफ्लेक्शन तो नहीं है, तो लोड अगर कैरिंग कैपेसिटी स्लैब की कहीं गड़बड़ हो गई है तो स्लैब डिफ्लेक्शन आपको शो कर जाएगी इमीडिएटली। कोरोजन या स्पेलिंग तो नहीं है, अगर कहीं आपको लग रहा है कि स्टील में कहीं कोरोजन है या फिर कुछ उससे स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो सकता है तो आपको नोट करना है। सेटलमेंट साइंस, कहीं भी आपको लग रहा है किसी वॉल में सेटलमेंट है या उसके किसी फाउंडेशन में सेटलमेंट है या कहीं आपको प्रॉपर्टी के आसपास लग रहा है कि लैंड में सेटलमेंट हो सकती है तो वो आपको चेक करनी है। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अनलेस क्वालिफाइड। अगर बिल्डिंग में सारी चीजें क्वालिफाइड नहीं होती हैं तो आपको स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट, आपको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देना है। आपको स्ट्रक्चर डिफेक्ट नोट करना है, अगर जब तक कि पूरी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं हो जब तक आप स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट नहीं देना है। और सेकेंडली, अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, इफ यू आर नॉट अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो आपको ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बिल्कुल भी साइन नहीं करना है इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड। And also, if the structure is not qualified, then also you should not provide the certificate, even if you are eligible to provide the certificate. Now, component-wise condition assessment. अभी तक हमने लैंड देखा, बिल्डिंग देखा, अब हम कंपोनेंट वाइज देखेंगे क्या क्या हमें चेकलिस्ट में देखना चाहिए एट द टाइम ऑफ साइट इंस्पेक्शन। फ्लोर वाइज कंडीशन क्या है उसकी, वॉल फिनिशेस क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल में वॉल फिनिशिंग क्या है, सीलिंग कंडीशंस क्या है, देन डोर्स एंड विंडोज मटेरियल्स एंड कंडीशंस क्या है, डोर विंडोज किस तरह के लगे हुए हैं, कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया है और किस तरह की उनकी कंडीशन है, स्टेयर केस कैसा है और क्या उसकी कंडीशन है, ये आपको सिविल फिनिशेस में आपको चेक करना है पॉइंट नंबर 11 में। देन सर्विसेज एंड यूटिलिटीज, सर्विसेज एंड यूटिलिटीज में आपको क्या चेकलिस्ट में चाहिए चेक करना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिटिंग, वाटर सप्लाई सोर्स, प्लम्बिंग कंडीशन,
सीवरेज, सेप्टिक टैंक और एसटीपी। एसटीपी उसमें है या नहीं है उस प्रॉपर्टी में, काफी बड़ी प्रॉपर्टीज है, कैंपस होता है तो उसमें एसटीपी इंटरनल कंपलसरी होता है कुछ केसेस में, या फिर फैक्ट्रीज बिल्डिंग में, या फिर कुछ जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनकी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस होती है कि एसटीपी होना चाहिए, तो वो एसटीपी आपने नोट करना है। सीवरेज किस तरह का है, सीवरेज इंटरनल किस तरह की है, और सेप्टिक टैंक बना है नहीं बना है, या एसटीपी है या नहीं है, ये आपको एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन जरूर नोट करना है। फायर फाइटिंग प्रोविजंस है या नहीं है, लिफ्ट लिफ्ट है या नहीं है, कौन सी मेक की है, कैपेसिटी कितनी है और कंडीशन कैसी है, चल रही है या नहीं चल रही है, आपको एक बार लिफ्ट में बैठकर ऊपर नीचे एक बार देख लेना चाहिए कि सिर्फ दिखाने के लिए लिफ्ट तो नहीं लगी है, सच में ही लिफ्ट काम करती है या नहीं है। दीज का आइटम्स कम्स अंडर सर्विसेज एंड यूटिलिटीज। नाउ एमिनिटीज। एमिनिटीज में आपको चेक करना है पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, पब्लिक पार्किंग तो नहीं इस्तेमाल हो रही है, साइट की अपनी पार्किंग है, या फिर वो कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है पार्किंग रूल्स में, ओपन स्पेस प्रॉपर है या नहीं है तो कितने हैं, लैंडस्केपिंग कैसे की गई है, पावर बैकअप क्या है, पावर बैकअप के लिए कोई जनरेटर है, इन्वर्टर है, सोलर है, या कोई और सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे हैं, उसमें कोई सीसीटीवी या सिक्योरिटी बैकअप या कुछ और किसी और तरह के सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हैं, वो भी आपको नोट करने हैं। दीज सम ऑफ दीज amenities and services add in the value. They are the value additions services. So occupancy and tenancy details. इसके बाद में आपको पॉइंट नंबर एफ पर आते हैं। ऑक्यूपेंसी एंड टेनेंसी डिटेल्स में आपको क्या क्या नोट करना है, अगर प्रॉपर्टी टेनेंसी से टेनेंट उसमें रहते हैं या फिर लीज पर है तो आपको क्या क्या नोट करना है, इफ एप्लीकेबल। टेनेंसी वेरिफिकेशन इफ एप्लीकेबल, टेनेंट नेम, उसका नाम क्या है, लीज स्टार्ट एंड एक्सपायरी, लीज या रेंट जब कब से शुरू हुआ है रेंट एग्रीमेंट और कब तक चलेगा, मंथली रेंट कितना है, एक्सकेलेशन क्लॉज है या नहीं है। एक्सकेलेशन क्लॉज होती है आपको एक टाइम के लिए रेंट कुछ कम है, उसके बाद हो सकता है दो दो महीने के बाद रेंट बढ़ जाए, या एक 2 साल के बाद बढ़ जाए, या 3 साल के बाद रेंट बढ़ने के एक्सेलरेशन क्लॉज होता है कुछ रेंट एग्रीमेंट्स या लीज एग्रीमेंट्स में। लॉक इन पीरियड है या नहीं है, अगर लॉक इन पीरियड है तो आपको बहुत कॉन्शियसली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कितना लॉक इन पीरियड है, और जब तक लॉक इन पीरियड रहेगा आप टेनेंट से या लीज लेसर से आप खाली लेसी से खाली नहीं करा सकते। रेंट कंट्रोल एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, क्या ये प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आती है या नहीं आती है, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आती है तो आप टेनेंट से खाली नहीं करा सकते प्रॉपर्टी, तो उस केस में कोई कोर्ट के कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, कोई कोर्ट में केस पेंडिंग तो नहीं है, या कोई लिटिगेशन में तो नहीं गया हुआ, ये भी आपको चेक करना है। नाउ इनकम पोटेंशियल, अगर प्रॉपर्टी टेनेंसी पर है तो उसका इनकम पोटेंशियल आपने देखना है, या लीज पर है तो कितनी इनकम जनरेट करके दे रही है। मार्केट रेंट असेसमेंट आपको करना है, आसपास कितना रेंट चल रहा है। वैकेंसी रिस्क तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी ठीक है रेंट पर दी जा सकती है लेकिन थोड़े दिन बाद खाली हो गई और उसके बाद भरे ही ना, या कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जिसकी वजह से वैकेंसी बढ़ जाए, या परसेंटेज ऑफ वैकेंसी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा रहे, तो वो आपको चेक करना है। वैकेंसी रिस्क तो नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस किसने देने हैं और कितने चल रहे हैं, और कितना मेंटेनेंस उस बिल्डिंग में लगता है, ये आपको नोट करना है। नेट ऑपरेटिंग इनकम इंडिकेटर्स, नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको इंडिकेटर्स जो है वो आपको पूरी तरह से नोट करने हैं, आसपास का पूरा सर्वे करना है, और किस किस तरीके से क्या क्या वो नेट ऑपरेटिंग इनकम इंडिकेटर अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको पूरी तरह से एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नोट करना है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर जी, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस साइट बेस्ड। तो आपको जब मौके पर विजिट करते हैं साइट पर, व्हेन यू विजिट द साइट, when you go to the site and for the inspection, what are the legal and regulatory observations you should make, you should do for the property you are visiting? Number 16, compliance observations. क्या क्या आप देखेंगे, अप्रूव्ड वर्सेस एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, अप्रूव्ड प्लान में क्या है और एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में कितना फर्क है, अगर फर्क है तो आप नोट करेंगे, और वो कंपाउंडेबल है या नहीं है ये आपको नोट करना चाहिए, कितना वहां पर एरिया अप्रूव्ड है, कितना कंपाउंडेबल है और कितना इलीगल है, कितना इंक्रोचमेंट में बनाया हुआ, ऑथोराइज्ड या अनऑथोराइज्ड एक्सटेंशन की हुई है उसने, चेंज ऑफ
यूज वायलेशन किया है, चेंज ऑफ लैंड यूज में अगर कोई चेंजेस है या वायलेशन है वो नोट करना है। फायर सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस उसने इस्तेमाल किए हैं या नहीं है वो आपको नोट करने हैं। एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंसेस, अगर कोई फैक्ट्री है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या कोई इस तरह के एनवायरमेंटल जोन के अंदर आती है तो वो एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन या कॉम्प्लायंसेस तो नहीं है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो आपको नोट करना है। एनवायरमेंटल इश्यूज इन वैल्यूएशन जो है वो आपको पूरी तरह से नोट करना है। लिटिगेशन और नोटिस इंडिकेटर, गवर्नमेंट नोटिस डिस्प्लेड, कोई आपको वहां पर कोई नोटिस गवर्नमेंट का कोई नजर आता है, कोई डिस्प्ले हुआ हुआ है। वैसे तो अगर आप प्रॉपर्टी विजिट करने गए हैं और अगर ऐसा होगा तो ओनर आपको आपके आने से पहले ही इस तरह का नोटिस हटा देगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो नोट करना है। एट द टाइम ऑफ विजिट आपको नोट करके रखना है और देखना है कि कोई ऐसा नोटिस तो नहीं है आसपास, या आप लोकल थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर घूमते हैं तो किसी और आदमी से भी पता कर सकते हैं कि इस तरह का कोई नोटिस तो इशू नहीं हुआ है। डिमोलिशन और सीलिंग रिस्क तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा आपको चीज वायलेशन नजर आई है जिससे इसकी डिमोलिशन हो जाए, या गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल बॉडी की तरफ से उसको सीलिंग का कोई रिस्क तो नहीं है। लोकल इंक्वायरीज एंड फीडबैक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको लोकल आसपास की जगह से, आसपास के लोगों से, कोई अपने सोर्सेज से लोकल इंक्वायरी और फीडबैक जरूर लेना चाहिए इस प्रॉपर्टी के बारे में। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लिटिगेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू हुआ हो या डिमोलिशन का रिस्क हो या सीलिंग का रिस्क तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट, नेबरहुड एंड मार्केट फैक्टर्स। अब लीगल रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको नेबरहुड बहुत जरूरी है। नेबरहुड एंड मार्केट फैक्टर्स क्या कहते हैं? सराउंडिंग डेवलपमेंट किस तरह की है, नेचर ऑफ सराउंडिंग प्रॉपर्टीज कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सोशल एमिनिटीज नियर बाय कितनी है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स एंड अदर सोशल एमिनिटीज, मार्केट्स कितना है आसपास, है तो कितना दूर है, अगर नहीं है तो उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। न्यूसेंस फैक्टर्स, कोई नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या नॉइस पॉल्यूशन किसी तरह का है आसपास, कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज है, एयरपोर्ट है या फिर कोई रिलीजियस प्लेस है जिससे नॉइस पॉल्यूशन न्यूसेंस फैक्टर क्रिएट होता है, तो वो भी आपको नोट करना है। मार्केटेबिलिटी कैसी है इस प्रॉपर्टी की, डिमांड एंड सप्लाई परसेप्शन कैसी है, लिक्विडिटी इन मार्केट, इन लोकल मार्केट कैसी है, कंपेरेबल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड हैं या नहीं है, आपने कंपेरेबल प्रॉपर्टीज प्रॉपरली आइडेंटिफाई करनी है, इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी देखनी है। डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर आपके इस एरिया में कितनी इस तरह की प्रॉपर्टी की डिमांड है तो सप्लाई कितनी है, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है या सप्लाई ओवर है, तो आपको ये भी देखना है कि ये लैंड आप सेलर्स मार्केट है या बायर्स मार्केट है। अगर सेलर्स मार्केट है तो क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, और अगर बायर्स मार्केट है तो क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ना, फोटोग्राफिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। एट द टाइम ऑफ साइट इंस्पेक्शन आपको फोटोग्राफ कैसे लेने हैं और डिजिटल रिकॉर्ड आपको क्या क्या रखना चाहिए। इसके अलावा भी आप कुछ रख सकते हैं, लेकिन क्या क्या मैंडेटरी है वो आपको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंडेटरी फोटोग्राफ्स क्या क्या है? फ्रंट एलिवेशन का आपको एक फोटो लेना है, रियल एलिवेशन का फोटो लेना है अगर पॉसिबल है, पीछे जाना। इंटरनल रूम्स के आपको फोटो लेने, फोटोग्राफ जरूर रखने चाहिए। किचन एंड टॉयलेट्स का तो जरूर ही रखना चाहिए, किचन में क्या क्या सर्विसेज हैं, टॉयलेट्स में क्या क्या सर्विसेज है, फोटोग्राफ आपको जरूर लेना है। स्टेयर केस या लिफ्ट अगर लगी है तो लिफ्ट की फोटोग्राफ, नहीं तो स्टेयर केस की। पार्किंग एरिया है तो पार्किंग एरिया की फोटोग्राफ, और सराउंडिंग रोड्स हैं तो सराउंडिंग आसपास कितनी रोड्स हैं और उन रोड्स की कंडीशन की आपको फोटोग्राफ्स जरूर रखनी चाहिए, ये आपको बाद में काम आ सकती है। एट द टाइम ऑफ कोई आपको चैलेंज करे या कोई लिटिगेशन में केस जाए तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब डिजिटल एविडेंस आपको क्या क्या रखना है एट द टाइम ऑफ विजिट? पॉइंट नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइट विजिट डेट टाइम स्टैम्प। आपको एक फोटोग्राफ लेना है जिसमें आपको साइट विजिट का डेट और टाइम दोनों चीजें वहां पर प्रॉपरली स्टैम्प आ जाए। इस तरह के कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके फोन में ऑटोमेटिक आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसमें जब आप फोटोग्राफ लेते हैं तो डेट और टाइम, और साथ साथ में जीपीएस टैगिंग भी आ जाती है, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स भी आप ले सकते हैं। सेम फोटोग्राफ में आप तीनों चीजें आप क्लिक कर सकते हैं, जीपीएस टैगिंग, डेट एंड टाइम, ये तीनों चीजें उसमें स्टैम्प फोटोग्राफ में आप ले सकते हैं। स्केच एंड रफ लेआउट जरूर बनाइए मौके पर जब आप जाते हैं।
तो एक गूगल मैप के थ्रू या रफ आप स्केच बना सकते हैं, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तब तो याद है, उसके बाद 2 3 4 विजिट हो जाएंगी, या 1 महीने के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कहाँ कैसे गए थे और आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी, उसके बाद आप 4 5 10 विजिट और भी कर सकते हैं। तो आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं किधर से गया था, कैसे गया था, क्या है, कहाँ पर मुड़े थे, कहाँ पर गए थे, कहाँ पर रोड थी, कहाँ पर कच्चा था। ये पूरा प्रॉपर एट द टाइम ऑफ विजिट ही अगर रफ लेआउट बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, रूट मैप बनाएंगे, तो आगे आने वाले टाइम में उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। नाउ वैल्यू डिक्लेरेशन एंड नोट्स, assumptions एंड लिमिटेशंस। एसेस लिमिटेशन नोटेड, आपको एसेस करने में कोई लिमिटेशन है वो नोट करना चाहिए। हिडन डिफेक्ट कोई है तो डिस्क्लेमर लेना चाहिए। अगर कोई हिडन डिफेक्ट्स है तो आपको उसके लिए डिस्क्लेमर देना चाहिए कि मैंने ये चीजें चेक की हैं, स्ट्रक्चरली मैंने नहीं चेक किया, या सॉइल कंडीशंस मैंने चेक नहीं की है, एनवायरमेंटल चीजें मैंने चेक नहीं की हैं, या कोई हिडन डिफेक्ट है, अगर आप उसमें कैपेबल नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसका डिस्क्लेमर जरूर दीजिए कि आई हैव नॉट चेक दीज थिंग्स। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो जो आपका जो स्टेक होल्डर है वो उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि वो किसी एक्सपर्ट से उसको चेक करा सकता है। या अगर उसमें कोई डिफेक्ट ऐसा है, फाउंडेशन सैगिंग है, या रूफ के अंदर या स्लैब के अंदर कोई आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, या बीम्स या कॉलम्स में कोई क्रैक आ रहा है, तो आप उसका डिस्क्लेमर दे सकते हैं दैट इट शुड बी चेक्ड बाय अ प्रॉपर क्वालिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर। नाउ वैल्यू सर्टिफिकेशन, physical inspection conducted, independent and unbiased opinion, compliance with IBBA evaluation standards। IBBA evaluation standards और IVS इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स जो भी आपका आरवीओ फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ये सर्टिफिकेट देना है। ये आपको नोट करना चाहिए कि आपको क्या क्या उसमें चीजें आपको कंपलसरी है। मेजरमेंट सर्वे एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन, ये एडिशनल आपको के पॉइंट दिया गया है, क्या क्या चीजें आप एडिशनली देख सकते हैं। 24 में मेजरमेंट मेथोडोलॉजीज, मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉलोड, आपने मेजरमेंट जो लिया है वो किस तरह से लिया है, IS 3861 के हिसाब से लिया है, या रेरा रूल फॉलो करके लिया है, रेरा के हिसाब से लिया है, या लोकल बायलॉज के हिसाब से लिया। आपने मेजरमेंट जो लिया है, आपने किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया है वो आपको मेंशन करना चाहिए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है, टेप से किया है मेजरमेंट या लेजर मीटर से किया है। फ्लोर वाइज वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आपने फ्लोर वाइज वेरिफिकेशन किया है एरिया का या नहीं किया है। हर फ्लोर में एरिया डिफरेंट हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राउंड फ्लोर में कम है, अपर फ्लोर में ज्यादा है, या ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा है, अपर फ्लोर में कम है, या बेसमेंट में वाइस वर्सा, कैसा भी हो सकता है। बालकनी, कॉमन एरिया, शाफ्ट एक्सक्लूजन नोटेड। बालकनी है, कॉमन एरिया है, शाफ्ट है, अगर आप उसका एक्सक्लूजन करना चाहते हैं एरिया से या इंक्लूजन करना चाहते हैं, वो आपको अपने इंस्पेक्शन चेकलिस्ट पे उसी टाइम नोट करना है एट द टाइम ऑफ विजिट। एरिया राउंडिंग मेथोडोलॉजीज डिस्क्लोज्ड, अब आपने एरिया जो कैलकुलेट किया है उसमें कुछ राउंड ऑफ किया है, माइनस किया है या प्लस किया है, अपर साइड में राउंड ऑफ किया है या लोअर साइड में राउंड ऑफ किया है, तो ये आपको नोट वहां पर एक दे देना चाहिए डिस्क्लोजर में कि मैंने एरिया का इतना पॉइंट्स में आपको राउंड ऑफ किया है। पॉइंट्स में 0.5 को आपने राउंड में अपर अपर लाइन में लिया है या लोअर एरिया में कैलकुलेट किया है। प्लान मैचिंग एंड डेविएशंस, सैंक्शन प्लान मैच्ड विद साइट लेआउट, floor additions beyond approval, change in internal walls, cantilever, balcony deviations, कंपाउंडिंग पोटेंशियल असिस्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सैंक्शन प्लान मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्लोर एडिशन बियॉन्ड अप्रूवल, अगर उसने कोई फ्लोर एडिशन किया है बिल्डिंग में, अगर एक 3 स्टोरी पास है उसने 4 स्टोरीज बना लिया है, या 3.5 ऑलरेडी अप्रूव्ड प्लान में है और उसने 4 पूरा कर लिया है, या फिर कुछ और भी एडिशन कुछ कर लिया है फ्लोर वाइज, तो वो आपको चेक करना है। इंटरनल वॉल्स अगर उसने चेंज कर दिया है, इंटरनल वॉल पुरानी वॉल हटाकर एरिया बड़ा करने के लिए वॉल्स में चेंजेस किए हैं एज पर अप्रूव्ड प्लान, अगर वो मैच नहीं करता वो आपको चेक करना है। कैंटिलीवर या बालकनीज में कुछ डेविएशंस की हैं। ये कंपाउंडिंग पोटेंशियल एसेस्ट, अगर कंपाउंडिंग में कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है कि जो कंपाउंडिंग से वायलेशन होती है, तो वो आपको नोट करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज लाइफ एंड डेप्रिसिएशन असेसमेंट।
अगर आप कॉस्ट अप्रोच से कर रहे हैं तो आपको एज, लाइफ एंड डेप्रिसिएशन असेसमेंट एट द टाइम ऑफ विजिट ही करना पड़ेगा। एक्चुअल एज ऑफ द बिल्डिंग क्या है, रेसिडुअल लाइफ ऑफ बिल्डिंग क्या है, मेंटेनेंस लेवल क्या है, पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए। फिजिकल डेप्रिसिएशन एस्टिमेट क्या है, ये आपको नोट करना चाहिए। फिजिकल डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी होगी, ये आपको एट द टाइम ऑफ विजिट ही पता चल पाएगा प्रॉपर्टी की। फंक्शनल ऑब्सोलेंस कोई है तो आपने, अगर कोई फंक्शनल ऑब्सोलेंस आपने चेक किया है, विजिट किया है प्रॉपर्टी का, विजिट करते वक्त आपको लग रहा है कि कोई फंक्शनल ऑब्सोलेंस नजर आ रही है बिल्डिंग में, तो वो नोट करिए, वो आपको उसमें डिटेक्शन में काम आएगी। एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस फैक्टर्स कुछ हैं तो वो आपको चेक करना है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस कोई उसमें प्रॉपर्टी के ऊपर तो नहीं है। नाउ एनवायरमेंटल रिस्क एंड सेफ्टी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल इश्यूज इन वैल्यूएशन। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आपको क्या क्या चेक करना है, फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है, सिस्मिक जोन के अंदर तो नहीं आता है, इंडस्ट्रियल हैजार्ड प्रॉक्सिमिटी तो नहीं है, कहीं इंडस्ट्री के आसपास तो नहीं है, कोई ऐसा हैजार्ड तो नहीं है जो इंडस्ट्रियल जोन में आने के आसपास होने से उसको कोई ऐसा हैजार्डियस कोई प्रॉक्सिमिटी है। तो हाई टेंशन लाइन इंपैक्ट, अगर उसके ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर जा रहा है तो वो नोट करना है। वाटर लॉगिंग एविडेंस, अगर उसमें कोई वाटर लॉगिंग का एविडेंस है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कभी वाटर लॉगिंग हुई है साइट पे या उसके आसपास की वॉल्स पे या उसके आसपास के एरिया में, आपको लग रहा है वहां पर वाटर के निशान आ रहे हैं वाटर लॉगिंग के, तो उसके लिए आपको अलर्ट होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर एग्जिट अवेलेबल है या नहीं है, इमरजेंसी स्टेयर केस है या नहीं है, वेंटिलेशन एडिक्वेसी है या नहीं है, वेदर वेदर प्रॉपर्टी या बिल्डिंग प्रॉपरली वेंटिलेटेड है या नहीं है, इमरजेंसी स्टेयर केस है नहीं है, फायर एग्जिट अवेलेबल है या नहीं है, नेचुरल लाइट अवेलेबल है या नहीं है, हैजार्डियस मटेरियल प्रेजेंस, एस्बेस्टस रूफिंग या कुछ और तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है प्रॉपर्टी में जो हैजार्डियस मटेरियल आपके साइट पर प्रेजेंट है। अगर कुछ ऐसा है एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन तो आपको वो अपनी रिपोर्ट में नोट करना है। नाउ नेक्स्ट इज टैक्स लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी टैक्स एंड चार्जेस वेरिफिकेशन। In point number 29, we will note municipal and statutory dues. प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट बेसिस, आपको प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट का बेस का पूरा आपको एट द टाइम ऑफ विजिट पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि जो आपने प्रॉपर्टी विजिट की है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगना चाहिए और वो प्रॉपर्टी टैक्स कितना दे रहा है, क्या कोई पेंडेंसी तो नहीं है। एरियस वेरिफिकेशन आपको करनी है क्योंकि उसके हिसाब से वैल्यू काफी फर्क पड़ेगा। अगर उसका कुछ एरियर है तो दैट में इम्पैक्ट ऑन द वैल्यूएशन। बेटरमेंट या डेवलपमेंट चार्जेस कुछ उसके पेंडिंग है या जमा करने वाले हैं या कुछ जमा कर चुका है। नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन चार्जेस कुछ जमा करने वाले हैं, नॉन एग्रीकल्चर चार्जेस नहीं किए हैं उसने जमा, तो वो आपको चेक करना है। सोसाइटी ड्यूज और मेंटेनेंस एरियाज, कुछ एरिया कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सोसाइटी कंट्रोल होता है, सोसाइटी ने बनाई होती है, थ्रिफ्ट सोसाइटी या दूसरी तरह की कई तरह की हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। अगर उनका कुछ उसमें बकाया है तो वो आपको चेक करना है कितना ड्यूज है और कितने मेंटेनेंस एरियर्स उनके पुराने बकाया हैं। स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इंडिकेटर्स, सर्कल रेट कंपैरिजन आपको करना है, मौके पर सर्कल रेट कितना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन गैप तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है उसने रजिस्ट्री कराते वक्त स्टैंप ड्यूटी की कोई चोरी की है या कुछ गलत स्टैंप ड्यूटी उसने गवर्नमेंट को पे की है, वो कल को उसके ऊपर कल को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पेनल्टी लगा सकती है या उसमें कुछ और भी लीगल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तो आपको नोट करना है। अंडर वैल्यूएशन रिस्क, अंडर वैल्यूएशन आपको रिस्क देखना है कि कोई प्रॉपर्टी में ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन इंडिकेटर में जो इसकी वजह से अंडर वैल्यूएशन हो सकती है इस प्रॉपर्टी की। नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग स्पेसिफिक चेक, अब अगर आप आईपीबीआई पर्पस के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या क्या चेक करना चाहिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग स्पेसिफिक चेक्स क्या क्या है। आईबीसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, पोजेशन स्टेटस अंडर CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस,
तो पोजीशन किसका है, ये आपको पोजीशन स्टेटस आपको चेक करना चाहिए अगर आप आईबीसी के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, इंडियन बैंक्रप्सी कोड के लिए अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो पोजीशन किसका है, पोजीशन स्टेटस आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एसेट कंट्रोल किसका है, एसेट पर इस वक्त कंट्रोल किसका है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का है या फिर लिक्विडेटर का है, इनमें से किसका कंट्रोल है, या किसी और का कंट्रोल है, या ओनर का कंट्रोल है, ऐसा तो नहीं है। तो अगर है तो आपको वो नोट करना चाहिए। सिक्योरिटी इंटरेस्ट नोटेड, अगर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो वो भी आपको नोट करना चाहिए। उसके ऊपर कोई मार्क हुआ है तो वो भी नोट एट द टाइम ऑफ विजिट आपको ही देखना है। चार्जेस, चार्ज रजिस्ट्रेशन स्टेटस, सरसाई इंडिकेटर्स आपको ये चेक करना है, सरसाई अगर वहां पर कोई इंडिकेटिव है आपको सरसाई की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। कोई चार्ज रजिस्ट्रेशन स्टेटस तो कोई उसमें वायलेशन तो नहीं है, कैसा तो नहीं है कोई पहले से ही कोई ये चीज वहां पर है या किसी और के नाम से बोल रही है। एसेट लिक्विडिटी अंडर डिस्ट्रेस, आपको एसेट लिक्विडिटी अंडर डिस्ट्रेस नोट करना है। देन फोर्स सेल लिक्विडेशन फैक्टर्स आपको क्या क्या चेक करने चाहिए पॉइंट नंबर 32 में। डिस्ट्रेस डिस्काउंट अप्लाइड, आपको कितना डिस्काउंट फैक्टर वहां पर अप्लाई करना है फोर सेल वैल्यू और लिक्विडेशन फैक्टर के लिए, आपको क्या क्या चेक करना है। टाइम टू सेल एस्टिमेट, आपको कितना टाइम मिलेगा सेल करने के लिए, टाइम टू सेल एस्टिमेट आपको करना है। मार्केट एडॉप्शन रिस्क आपको चेक करना है। दीज द पॉइंट नंबर एन इज फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग स्पेसिफिक चेक्स, especially for IBBI valuers, IBC code. Now, insurance risk cover indicators. Insurance relevant input. Replacement cost basis. रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए आपको क्या क्या बेसिस चाहिए वो आपको देखने हैं। उस बेसिस से आपको वैल्यूएशन के हिसाब से क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए वो आपको चेक करना है। साल्वेज पोटेंशियल चेक करना है। रिस्क प्रोन कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स आपको चेक करने हैं। नेचुरल क्लाइमेटी एक्सपोजर, अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी एक्सपोजर है तो आपको वो भी आपको अपनी रिपोर्ट में नोट करना है। एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन आपको अपनी चेकलिस्ट में नोट करना चाहिए। नाउ डिजिटल एक्सेल मोबाइल इंस्पेक्शन फॉर्मेट फील्ड्स, मैंडेटरी डिजिटल फील्ड्स फॉर एक्सेल और एप्लीकेशन। ऑटो डेट एंड टाइम स्टैम्प होना चाहिए, जीपीएस ऑटो कैप्चर होना चाहिए, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन होना चाहिए अगर आपके पास से आप इसको बनाते हैं। गूगल फॉर्म पर भी आप बना सकते हैं, डिजिटल भी आप कोई एप्लीकेशन में बना सकते हैं अपना साइट विजिट का। ऑटो एरिया कैलकुलेशन सेल भी आप कर सकते हैं। फोटो लोड स्लॉट भी कर सकते हैं, साथ में आप वॉइस टू टेक्स्ट रिमार्क भी आप दे सकते हैं। ये आपको डिजिटली आप अपना रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं उसका इंडिकेटर है। आप डिजिटली जब आप साइट पर विजिट करते हैं तो उसको डिजिटली आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप गूगल फॉर्म एक बना लीजिए, गूगल फॉर्म के अंदर सारी चीजें ड्रॉप डाउन कर लीजिए और उसमें आप वन बाय वन टिक करते चलिए, तो आपकी सारी इंस्पेक्शन हो जाएगी। ये सारी चेकलिस्ट आपकी वहां पर कवर हो सकती है। एक्सेल शीट टैब्स रिकमेंडेड, अगर आप एक्सेल शीट के साथ काम करते हैं तो इंस्ट्रक्शन एंड क्लाइंट डिटेल्स वहां पर नोट करिए, लैंड पर्टिकुलर्स नोट करिए, बिल्डिंग मेजरमेंट्स नोट करिए, कंडीशन असेसमेंट नोट करिए, लीगल कॉम्प्लायंसेस नोट करिए, मार्केट डाटा एंड फोटोग्राफिक इंडेक्स। ये सारी चीजें आप एक्सेल में आप नोट कर सकते हैं। नाउ वैल्यूएशन मेथड इनपुट रेडीनेस, इनपुट्स फॉर वैल्यूएशन अप्रोचेस। अब आपको कौन कौन सी अप्रोचेस, आपको सभी को पता है तीन ही तरह की अप्रोचेस हैं। अगर मार्केट अप्रोच से आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो कंपेरेबल सेल इनपुट्स आपको रेडी होना चाहिए। अगर आप कॉस्ट अप्रोच से करना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ब्रेकअप आपको आपको रेडी चेक करना चाहिए। अगर आप इनकम अप्रोच से करना चाहते हैं तो रेंट एंड यील्ड इनपुट आपके पास रेडी होना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स इनपुट्स फॉर वैल्यूएशन अप्रोचेस। नाउ क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू, इंटरनल रिव्यू चेक्स, peer review completed, अर्थमेटिक वेरिफिकेशन, एरिया रिकंसिलेशन। अब आपको चेक क्या क्या करना है, ये सारी इंस्पेक्शन करने के बाद आपको साइट छोड़ने से पहले आपको कुछ चीजें चेक करनी है। पीयर रिव्यू आपका हो गया है, वहां पर अर्थमेटिक वेरिफिकेशन हो गई है, एरिया रिकंसिलेशन हो गया है, एजम्पशंस कंसिस्टेंसी हो गई है, फोटोग्राफ्स क्रॉस वेरीफाइड। फोटोग्राफ चेक कर लीजिए, आपने कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है फोटोग्राफ ले लिया लेकिन कैमरे में वो क्लिक ही नहीं होते, तो वो भी आप चेक कर लीजिए कि आपका फोटोग्राफ वहां पर कैमरे में क्लिक हो गया है और उसका रिकॉर्ड आपके पास आ गया है। ना ऑडिट एंड डिसिप्लिनरी सेफ्टी,
इंस्पेक्शन नोट्स प्रिजर्व, जो आपने इंस्पेक्शन किया है वो आपने नोट्स उसको संभाल कर रखिए, ऑफिस आने के बाद उसको अच्छी तरह से स्टोर करिए। साइट फोटोज आर्चिव, साइट फोटो जो आपने ली है उनका एक अलग से फोल्डर बनाइए, उसको वहां पर प्लेस कर दीजिए, सो दैट आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो वो आपको यूज कर सके। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई है तो वहां पर आप उसको चेक करिए, ये ऑडिट एंड डिसिप्लिनरी सेफ्टी के लिए आता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका इस प्रॉपर्टी के लिए तो आप उसको चेक करिए और उसको उसी वक्त वहां पर नोट करिए अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, और साथ में आपको वहां पर आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी जो वैल्यूएशन है वो इंडिपेंडेंटली की गई है, वो आप डिक्लेरेशन, ये चार चीजें आपको ऑडिट एंड डिसिप्लिनरी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये आप साथ साथ में आप नोट करते रहिए और उसको सारा डाटा आप प्रिजर्व करिए। नाउ फाइनल साइट विजिट कंफर्मेशन। फाइनल कंफर्मेशन इज अंडर पॉइंट नंबर 13, प्रॉपर्टी फिजिकली इंस्पेक्टेड, लोकल इंक्वायरीज मेड। ये टिक करिए, जो जो आपको लगता है कॉन्फिडेंस के साथ वो आप ये पॉइंट टिक कर सकते हैं। लोकल इंक्वायरीज आप कर चुके हैं, नो इंड्यूसमेंट एक्सेप्टेड, ट्रू एंड फेयर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। ये फाइनल कंफर्मेशन साइट से निकलने से पहले आप ये चेक करिए। डिटेल्ड बिल्डिंग इंस्पेक्शन, डिटेल्ड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन एंड मटेरियल चेकलिस्ट, क्रूशियल फॉर कॉस्ट, इंश्योरेंस, बैंक्स एंड आईबीसी वैल्यूएशंस। अब क्या क्या बेसिक बिल्डिंग स्पेसिफिकेशंस हैं जो, या मटेरियल चेक है जो आपको करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन? डिटेल्ड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल चेकलिस्ट फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, इंजीनियर्स, बैंक्स, आईबीसी, इंश्योरेंस एंड कोर्ट केसेस। बेसिक बिल्डिंग पर्टिकुलर्स। अब आपको बेसिक बिल्डिंग पर्टिकुलर में क्या क्या नोट करना है, क्या क्या टिक करना है, कैसे आगे बढ़ना है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ बिल्डिंग देखनी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, मिक्स्ड यूज है, किसी और पर्पज के लिए। नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने देखनी है, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, न्यू है, ओल्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या किसी और तरह की बिल्डिंग है, पार्टली कंप्लीट है, पार्टली फिनिश्ड है, अनकंप्लीट है, अनयूज्ड है। स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा है, आरसीसी फ्रेम्ड है, लोड बेरिंग है, या स्टील है। So friends, now we will discuss about the detailed building inspection and material checklist. Detailed building specification and construction material checklist to be noted by a valuer at the time of physical inspection to the site. First of all, if you are a registered valuer, engineer, or bank valuer for bank, IBC, insurance, and you are providing your valuation report for any court purpose, then you should note the following points at the time of inspection. बेसिक बिल्डिंग पर्टिकुलर्स में आपको चार चीजें नोट करनी है। चार में से फर्स्ट है टाइप ऑफ बिल्डिंग, किस तरह की, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, मिक्स्ड है, या किसी और यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है। नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, न्यू है, ओल्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अनफिनिश्ड है, अनकंप्लीट है। स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा है, आरसीसी फ्रेम्ड है, लोड बेरिंग है, स्टील है, या किसी और तरह का मिक्स्ड है। क्वालिटी क्लास, इकोनॉमिकल है, स्टैंडर्ड है, गुड है, या प्रीमियम है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये आपको नोट करना है। चार चीजें आपको बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग पर्टिकुलर्स में नोट करनी है। नाउ फाउंडेशन एंड सब स्ट्रक्चर। फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या नोट करना है। टाइप ऑफ फाउंडेशन, किस तरह के, आइसोलेटेड है, कंबाइंड है, राफ्ट है, या पाइल है, या किसी और तरह की फाउंडेशन है। फाउंडेशन मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, आरसीसी है, पीसीसी है, स्टोन मशीनरी है, या कुछ और मटेरियल इस्तेमाल किया है। सीमेंट कौन सा इस्तेमाल किया है, ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पोजनाला पोर्टलैंड सीमेंट है, या पीएससी है। कंक्रीट गेट कौन सा इस्तेमाल किया एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, आपको नोट करना चाहिए। M15 है, M20 है, M25 है, या उससे भी हायर है। रेनफोर्समेंट स्टील कौन सा इस्तेमाल किया है, Fe415 है, Fe500 है, या टीएमटी है। प्लिंथ हाइट एंड प्लिंथ प्रोटेक्शन कितना है, प्लिंथ हाइट ग्राउंड लेवल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा किया है, ये आपको नोट करना चाहिए। डैम प्रूफिंग कोर्स किया है, नहीं किया है।
अगर किया है तो कौन सा मटेरियल का है और कितनी थिकनेस है। बेसिकली फ्रेंड दिस इज द बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। सिविल इंजीनियरिंग में जो जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर सारा बिल्डिंग इंस्पेक्शन में आपको अप्लाई करना है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज अ सिविल इंजीनियर फॉर लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन। नाउ पॉइंट नंबर 3, सुपर स्ट्रक्चर एंड मैसनरी में आपको क्या क्या नोट करना है। कॉलम्स एंड बीम्स किस तरह के हैं, आरसीसी के हैं, स्टील के हैं, या किसी और तरह के हैं, या फिर सिंपल हैं। स्लैब टाइप किस तरह का है, कन्वेंशनल है, आरसीसी है, फ्लैट स्लैब है, या प्रीकास्ट स्लैब, या किसी और तरह का है। एक्सटर्नल वॉल मटेरियल, एक्सटर्नल वॉल में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया है, ब्रिक है, एएसी ब्लॉक है, या फिर स्टोन है, स्टोन मैसनरी है। इंटरनल पार्टीशन मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया है, वुड है या सीमेंट है या ब्रिक है या ब्लॉक्स हैं या स्टोन्स हैं। मोटर टाइप कैसा इस्तेमाल किया है, वो किस तरह का मोटर इस्तेमाल किया, सीमेंट है, लाइम है, या कंपोजिट मोटर इस्तेमाल किया है। वॉल थिकनेस कितनी है, इंटरनल कितनी थिकनेस की है, एक्सटर्नल कितनी थिकनेस की है, ये भी आपको एट द टाइम ऑफ विजिट नोट करना है ना। रूफिंग एंड टेरेस वर्क, रूफिंग और टेरेस वर्क पे आपको क्या क्या नोट करना चाहिए। रूफ टाइप कैसी है, आरसीसी स्लैब है, ट्रस है, या शीट है, या स्टील है, या किस तरह की है, या एस्बेस्टस है, या किसी और तरह की शीट्स है। रूफिंग मटेरियल कैसा है, आरसीसी है, जीआई है, एसी है, या टाइल्स है। वाटर प्रूफिंग सिस्टम कैसा है, ब्रिक बैट, कॉबा है, या एपीपी है, या पीयू है। थर्मल इंसुलेशन किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कौन सा किस तरह का किया है। टेरेस फ्लोरिंग है, आईपीएस है, चाइना मोज़ेक है, टाइल्स है, या मड फस्का है, कैसा है। आपको टेरेस फ्लोरिंग चेक करना है। पैरापेट वॉल एंड कॉपिंग, पैरापेट वॉल किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कितना बड़ा कितना हाइट है, और कॉपिंग किया है तो किस मटेरियल का किया है। फ्लोरिंग। आइटम नंबर 5 इज फ्लोरिंग। एरिया वाइज स्पेसिफिकेशन। लिविंग हॉल, लिविंग हॉल में किस तरह की फ्लोरिंग है, विट्रीफाइड है, मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स। बेडरूम्स में कौन सी फ्लोरिंग है, विट्रीफाइड है, वुडन लैमिनेट है, या कोई और तरह की है। किचन में किस तरह की है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, टाइप ऑफ फ्लोरिंग जो या टाइप ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, ये बेसिकली कन्वेंशनल मटेरियल जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है वही है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। किचन में एंटी स्किड है या सिरेमिक टाइल्स इस्तेमाल की हुई हैं। टॉयलेट्स में एंटी स्किड है या सिरेमिक टाइल्स हैं। स्टेयर केस में ग्रेनाइट है, कोटा है, या आरसीसी फिनिश है। बालकनी में वरांडा है, बालकनी या वरांडा में आपको एंटी स्किड टाइल इस्तेमाल की हुई है तो आपको नोट करनी है। पार्किंग में या ड्राइववे में आईपीएस है, ट्रेमिक्स है, या पेवर ब्लॉक्स इस्तेमाल किए हुए हैं। स्कर्टिंग मटेरियल एंड हाइट, स्कर्टिंग अगर फ्लोरिंग के साथ लगाई है तो उसका मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल है या अलग मटेरियल है, और उसकी हाइट कितनी है स्कर्टिंग की। अगर फ्लोरिंग के साथ स्कर्टिंग लगाई हुई है तो वो किस मटेरियल की लगाई हुई है, सेम मटेरियल है या अलग है, और वो कितनी हाइट तक उसने स्कर्टिंग प्रोवाइड की हुई। नाउ प्लास्टरिंग, लेट्स कम टू प्लास्टर एंड वॉल फिनिशेस। इंटरनल प्लास्टर किस तरह का है, सीमेंट, जिप्सम और पीओपी। एक्सटर्नल प्लास्टर में सीमेंट और वेदर प्रूफ प्लास्टर किया हुआ है। पुट्टी एप्लीकेशन की है, सिंगल है या डबल कोट है। इंटरनल पेंट है, डिस्टेम्पर है और एमल्शन है। इंटरनल पेंट में किस तरह का किया हुआ है। एक्सटर्नल पेंट में एक्रिलिक किया है, टेक्सचर किया है, या इलास्टोमेट किया है। टाइल क्लैडिंग में टाइल क्लैडिंग और डाडो वर्क में क्या आपने चेक करना है, किचन में या टॉयलेट्स में कोई टाइल क्लैडिंग या डाडो वर्क तो नहीं किया हुआ है। अगर किया है तो कितना हाइट तक किया है। नाउ लेट्स कम टू डोर्स एंड विंडोज। डोर्स एंड विंडोज एंड वुडवर्क में आपको क्या क्या देखना चाहिए एट द टाइम ऑफ साइट विजिट। ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि किस किस तरह के डोर्स एंड विंडोज हो सकते हैं साइट पर। मेन डोर, मेन डोर टीक का हो सकता है, सॉलिड वुड का हो सकता है, फ्लश डोर हो सकता है, या मेटल का हो सकता है, किसी और पर और किसी मटेरियल का भी हो सकता है। इंटरनल डोर, फ्लश डोर, पैनल डोर, स्किन डोर्स। ना डोर फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स किस तरह के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। आजकल तो और भी काफी पीवीसी या दूसरे तरीकों के आ गए हैं, आप उसका भी नोट कर सकते हैं।
कोई और इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया है डोर फ्रेम्स में, तो वो इस्तेमाल कर, वो यहां पर नोट कर सकते हैं। विंडो एल्यूमिनियम है, यूपीवीसी है और वुडन है। ग्लेजिंग किस तरह की ग्लेजिंग की हुई है, सिंगल ग्लेजिंग है, डबल है, या टफन टफन ग्लास से ग्लेजिंग की है, तो वो आपको नोट करनी है। हार्डवेयर फिटिंग किस तरह की, स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है। वार्डरोब्स और फिक्स कैबिनेट अगर है तो उसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है वो आपको नोट करने हैं। ये सभी चीजें आपको एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नोट करनी है, किस किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ये करनी चाहिए। ये सब सब चीजें आपको एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नोट करना चाहिए एज अ वैल्यूअर। नाउ किचन स्पेसिफिकेशंस। काउंटर टॉप किस तरह का है, ग्रेनाइट का है, क्वार्ट्ज का है या मार्बल का है। मॉड्यूलर किचन है, यस योर नो। सिंक उसमें किस तरह का लगा है, एसएस का लगा है या कंपोजिट लगा है, या फिर ग्रेनाइट का लगा है, या फिर किसी स्टोन का लगा है, या रेडीमेड लगा हुआ है। किचन डाडो टाइल्स लगी हैं या नहीं लगी हैं, चिमनी है या नहीं है, या हॉब की प्रोविजन है या नहीं है, ये आपको नोट करना है एट द टाइम ऑफ विजिट। और फोटोग्राफ जरूर लीजिए हर हर सेक्शन की, जो भी आप यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, प्लीज click a photograph immediately so that it can be in your memory as well as can be kept as a record. Toilet and sanitary fittings. WC टाइप किस तरह का, इंडियन वेस्टर्न और वॉल हंग है। वॉश बेसिन किस तरह का है। सैनिटरी वेयर क्वालिटी किस तरह की, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। सीपी फिटिंग स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। शॉवर एंड मिक्सचर प्रोविजन है या नहीं है। टॉयलेट में वेंटिलेशन प्रॉपरली है या नहीं है, ये भी आपको नोट करना है एज अ वैल्यू। Each and every specification adds something in value or deducts something in value if it is not provided. So plumbing installation, water supply pipes, GI, CPVC, UPVC किस तरह का है ये आपको नोट करना है। ड्रेनेज पाइप्स किस तरह के हैं, पीवीसी है या स्टोन वेयर है। कंसील्ड या एक्सपोज प्लम्बिंग है। ओवरहेड टैंक प्लास्टिक का है, आरसीसी का है या स्टील का है। अंडरग्राउंड टैंक आरसीसी है या मैसनरी है। रेन वाटर डाउन टेक पाइप्स किस तरह के हैं, पीवीसी हैं या दिए हैं या नहीं दिए हैं, या फिर ओपन सीधा ही रेन वाटर सीधा डाल रहे हैं, या फिर रेन वाटर के लिए अलग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, वायरिंग सिस्टम कैसा है, कंसील्ड है या सरफेस है। आजकल तो सभी कंसील्ड ही होता है, सरफेस वायरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन फैक्ट्री में कहीं कहीं आपको सरफेस वायरिंग अभी मिल सकती है। ऑब्सोलेट हो गया है 90% केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में जहां पर अभी कोई और तरीका नहीं है वहां पर सरफेस वायरिंग आपको मिल सकती है, पुरानी बिल्डिंग्स में मिल सकती है। वायर मटेरियल कैसा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट हो चुका है, कॉपर की ही वायरिंग मिलेगी, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ विजिट जरूर नोट कर लेना चाहिए, कहीं पर गलती ना हो। स्विचेस एंड सॉकेट क्वालिटी किस तरह की है, मॉड्यूलर है या सिंपल है या ट्रेडिशनल है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एमसीबीज हैं या नहीं है। किटकैट तो नहीं लगे हुए, एमसीबी लगे हुए हैं, तो ईएलसीबी वगैरह वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। अर्थिंग प्रोविजन है या नहीं है बिल्डिंग में। पावर बैकअप वायरिंग है या नहीं है। पावर बैकअप के लिए जनरेटर है या सोलर है, या फिर कोई इन्वर्टर या कोई और तरह का कोई बैकअप है या नहीं है। डाटा और इंटरनेट केबलिंग डली हुई है या नहीं है, या सब आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में नोट करना। फायर एचवीएसी एंड स्पेशल सर्विसेज में आपको क्या क्या नोट करना है। फायर डिटेक्शन सिस्टम या नहीं है तो कौन सा है। फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर हाइड्रेंट है, फायर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, अगर लगे हुए हैं तो आपको जरूर नोट करने चाहिए, और कितने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स या हाइड्रेंट लगे हुए हैं वो आपको जरूर एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नोट कर लेने चाहिए। इट मे ऐड टू द वैल्यू एंड समटाइम्स इट इज वेरी मैंडेटरी। अदरवाइज अगर फायर का प्रोटेक्शन पूरा नहीं है तो लोकल बॉडीज की तरफ से कई बार उस बिल्डिंग को सील किया जा सकता है। एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग अरेंजमेंट्स आपको देखने हैं, स्प्लिट है, वीआरवी है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। गैस पाइपलाइन प्रोविजंस है या नहीं है, या उस कॉलोनी में या उस एरिया में कई बार गैस पाइपलाइंस की प्रोविजंस होती है, वो आपको चेक करनी है या नहीं है। सोलर वाटर हीटर या सोलर पावर इन्वर्टर आपको दिया गया है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। सोलर वाटर हीटर और सोलर पावर। स्टेयरकेस, रेलिंग एंड लिफ्ट्स, इसमें आपको क्या क्या चेक करना है। स्टेयरकेस सेक्शन में स्टेयरकेस टाइप
आरसीसी, स्टील और वुडन, किस तरह का स्टेयर है आपको चेक करना है। रेलिंग मटेरियल एसएस हो सकता है, एमएस हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या किसी और तरह का भी हो सकता है। स्टेनलेस स्टील, एमएस और ग्लास। लिफ्ट अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो कितनी कैपेसिटी की है। लिफ्ट टाइप एंड कैपेसिटी, किस टाइप की लिफ्ट है और कितनी कैपेसिटी की है, ये आपको नोट करनी है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। कंपाउंड वॉल, टाइप एंड हाइट, एंट्रेंस गेट, एमएस, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। इंटरनल रोड्स, पाथवेज, अगर बिल्डिंग बड़ी है या फिर कैंपस है, कैंपस में इंटरनल रोड्स किस तरह के हैं, या पाथवेज हैं, फुटपाथ्स हैं तो किस तरह के हैं। अगर आप किसी सोसाइटी का या किसी फैक्ट्री का या किसी बड़े प्रेमिसेस का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इंटरनल रोड्स उसमें बने हैं या नहीं बने हैं, अगर बने हैं तो कितने हैं, कितना उसका एरिया है। और पाथवेज हैं तो किस तरह के पाथवेज हैं, वो आपको सब नोट करना है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वहां पर दिया गया है या नहीं दिया गया, लैंडस्केपिंग एंड पेविंग किया है या नहीं किया है। नाउ ग्रीन and sustainable features. These are very important in few cities. Green sustainable features क्या क्या हो सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर ग्रीन बिल्डिंग है तो क्या क्या आपको चेक करना है। ग्रीन बिल्डिंग में आपको चेक करना है, मतलब ये मैं आपको प्राइमा फिसाई बता रहा हूं, लेकिन काफी चीजें चेक करनी होती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ विजिट आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको चेक करनी है तो कितनी कैपेसिटी की है और कहाँ से है, वेदर इफेक्टिव है या नहीं है, या सिर्फ दिखाने के लिए डाली गई है, ये आपको चेक करना है। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है या नहीं है। वाटर सेविंग फीचर्स फिक्सचर्स हैं या नहीं है, जितने भी फिक्सचर्स हैं वो सब वाटर सेविंग है या नहीं है, वाटर वेस्टेज तो नहीं हो रही। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है या नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन उसने लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो वो वैलिड है या नहीं। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्वेशंस, ओवरऑल वर्कमैनशिप क्वालिटी आपको चेक करनी है। विजिबल डिफेक्ट्स कोई तो नहीं है, क्रैक्स या डैम्पनेस कोई नजर तो नहीं आ रहा है, कोई विजिबल डिफेक्ट, कोई क्रैक है या फिर कोई डैम्पनेस है या फिर कोई उसमें पपड़ी उतर गया है, या फिर प्लास्टर में कोई है, या फिर कोई डिफ्लेक्शन है। कहीं भी कोई भी चीज आपको नजर आ रही है वो आपको नोट नोट उसी वक्त करनी है, और उसका फोटो भी लीजिए सो दैट कल को कोई चैलेंज ना कर सके आपको। लेवल ऑफ मेंटेनेंस क्या है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, पुअरली मेंटेन्ड है, नीटली है, या फिर अंडर मेंटेनेंस है, कुछ है तो आप उसको नोट करिए। एनी सुपीरियर और इंफीरियर स्पेसिफिकेशंस, कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन जो सुपीरियर क्वालिटी की है वो नोट करिए, वो वैल्यू एडिशन होगा। अगर इंफीरियर क्वालिटी की है जो अभी या ऑब्सोलेट क्वालिटी की है तो वो भी नोट करिए, उससे आपको डिडक्शन करनी पड़ेगी। नाउ वैल्यू और ऑब्लिक इंजीनियर रिमार्क्स, यहाँ पॉइंट नंबर 17 में आपके लिए खाली जगह छोड़ी हुई, यहां पर आप सब कुछ वो लिखिए जो आपने इस इन पॉइंट्स में ऑब्जर्व करना रह गया है, और आपको आपको वो करना चाहिए, या आपने पॉइंट वहां पर मौके पर आपने देखा है, या वो पॉइंट आपने नोट किया है जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हुआ, वो यहां पर आप अपना रिमार्क में नोट कर सकते हैं। दिस चेकलिस्ट इंटेंडेड टू रिकॉर्ड actual construction specifications and material used, forming a critical input of cost approach, depreciation analysis, insurance valuation, bank lending, insolvency proceedings and court matters। तो यहां पर फ्रेंड जो 17 पॉइंट्स दिए गए हैं ये चेकलिस्ट है फॉर रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन एंड मटेरियल यूज, फ्रेमिंग अ क्रिटिकल इनपुट फॉर कॉस्ट अप्रोच। अगर आप अपनी वैल्यूएशन कॉस्ट अप्रोच के यूज करके करना चाहते हैं, या डेप्रिसिएशन एनालिसिस करना चाहते हैं, इंश्योरेंस वैल्यूएशन करना चाहते हैं, बैंकिंग और लैंडिंग वैल्यूएशन करना चाहते हैं बैंकिंग पर्पस के लिए या लैंडिंग पर्पसेस के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए करना चाहते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए करना चाहते हैं, या किसी कोर्ट मैटर के लिए करना चाहते हैं, तो आपको ये 17 पॉइंट की चेकलिस्ट बहुत बहुत जरूरी है अपने रिपोर्ट के साथ लगाना। क्या आपने एट द टाइम ऑफ विजिट आपने क्या क्या चीजें, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखी। और आई रिकमेंड, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर चीज की आप फोटोग्राफ जरूर लीजिए। नेम ऑफ वैल्यूअर लिखिए, आईबीबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है तो आप अपना सीबीडीटी का नंबर लिखिए, सीबीडीटी भी नहीं है तो आप अपना मेंबरशिप नंबर लिखिए, जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के आप मेंबर हैं। डेट ऑफ इंस्पेक्शन लिखिए, सिग्नेचर यहां पर करिए। दिस दिस इज बेसिकली अ चेकलिस्ट। यहां पर आपको वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको याद रहेगा कि ये चेकलिस्ट मैंने साइन की थी और ये मैंने ही बनाई थी। और इस चेकलिस्ट को प्रिजर्व करिए, जैसा कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट में देखा, मिनिमम 3 साल के लिए कंपलसरी है।
सभी चेकलिस्ट और कैलकुलेशन, दिस इज अ प्रिलिमिनरी चेकलिस्ट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। इसके बाद आप कैलकुलेशन भी करेंगे, ऑफिस में जाकर आप पूरा डाटा भी कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, वो सब कुछ प्रिजर्व करना है। लेकिन चेकलिस्ट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। दिस चेकलिस्ट इज डिजाइन फॉर प्रोफेशनल वैल्यूएशन इंस्पेक्शन एंड कैन बी अडॉप्टेड फॉर आईबीबीआई पर्पज, बैंक एम्पैनलमेंट पर्पज, बैंक एम्पैनल्ड वैल्यूअर्स पर्पज, कोर्ट मैटर्स, institutional valuers, mobile based inspections and digital record keeping purposes. So friends, we have prepared a more checklist to be verified at the time of inspection, site inspection checklist for land and building valuation in India for use by registered valuers or approved valuers. आपको एक टेबुलर फॉर्म में यहां पर मैं डिस्कस करूंगा जो सीवी ने प्रिपेयर किया है। सीरियल नंबर है, एस्पेक्ट है, आपको क्या नोट करना है एट साइट, व्हाट टू स्टडी वेरीफाई, क्या आपको उसमें वेरीफाई करना है और उसका रेलेवेंस क्या है। अब आप बोलोगे यार ये तो कॉमन चीजें हैं, तो हमें पता ही है। देखिए, कॉमन चीजें सबको पता होती है, लेकिन गलती जिसको सब कुछ पता है वो ही करता है। जिसको नहीं पता वो तो देख देख के करेगा, जिसको सब कुछ पता है वो ही गलती करता है। और हमने ऐसा देखा है, मुझे काफी फोन आते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि काफी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर मुझे तो सब कुछ आता था लेकिन मैंने गलती कर दी, अभी मेरा जो रिपोर्ट है वो लिटिगेशन में चला गया, मेरी हेल्प करिए। तो इसीलिए ये चेकलिस्ट बनाई गई है ताकि आप गलती कर होते होते भी गलती ना करें। यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड कि आपको मौके पर क्या देखना है। साइट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन इन इंडिया। अब जनरल पर्टिकुलर्स क्या है? लोकेशन, लोकेशन में व्हाट टू डू, व्हाट टू नोट एट साइट, एग्जैक्ट एड्रेस आपको नोट करना है, लैंडमार्क, अप्रोच रोड। अब व्हाट टू स्टडी, सेल डीड आपने देखनी है, म्युनिसिपल रिकॉर्ड चेक करने हैं। रेलेवेंस क्या है इसका? इट डिटरमिन्स मार्केटेबिलिटी एंड वैल्यू। लोकेशन, अब एसेसिबिलिटी में क्या आपको चेक करना है? विड्थ और रोड टाइप, बीटी, सीसी और अर्दन। बिटुमिनस है, सीसी है और अर्दन है, रोड की विड्थ और ये। अब उसको कैसे चेक करेंगे? डेवलपमेंट प्लान, लोकल बायलॉज, इन दोनों को चेक करके आप उसको चेक कर सकते हैं विड्थ ऑफ रोड कितनी है। अब उसका रिलेवेंस क्या है? इट अफेक्ट यूजेबिलिटी एंड हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। एसेसिबिलिटी होगी तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे, जनरल पर्टिकुलर्स पे आप नेबरहुड देखेंगे। नेबरहुड में क्या क्या देखेंगे? रेसिडेंस है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या मिक्स यूज है। कैसे देखेंगे? लोकल डेवलपमेंट पैटर्न, लोकल डेवलपमेंट पैटर्न आप चेक करेंगे। अब उसका क्या इफेक्ट होगा? इट इन्फ्लुएंस डिमांड एंड रेट। डिमांड एंड रेट आपको नेबरहुड से पता चलेगा कि किस तरह की नेबरहुड है और वहां पर किस तरह की डिमांड हो सकती है और कितना वहां पर रेट प्लस या माइनस हो सकता है। सराउंडिंग डेवलपमेंट, नेचर एंड एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी आप देखेंगे। साइट इंस्पेक्शन एंड प्लानिंग अथॉरिटी डाटा, ये कैसे मिलेगा? व्हाट टू स्टडी। सराउंडिंग डेवलपमेंट कैसे देखेंगे? तो उसमें क्या देखेंगे? नेचर एंड ऑफ एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी आप देखेंगे और उसको कैसे पता चलेगा? साइट इंस्पेक्शन एंड प्लानिंग अथॉरिटी डाटा से। और उसका क्या इंपैक्ट होगा? इट इंपैक्ट्स फ्यूचर पोटेंशियल। फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल क्या होगा, वहां पर कैसे फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, तो वो आप सराउंडिंग डेवलपमेंट देखकर पता कर सकते हैं। नौ, ये तो जनरल पर्टिकुलर्स हो गए। अब लैंड में हमें क्या क्या देखना चाहिए? साइट पर जब विजिट करते हैं लैंड में हमें क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले प्लॉट की शेप। प्लॉट की शेप में क्या देखेंगे हम? रेगुलर है या इरेगुलर? वो कैसे पता चलेगा? आपको लेआउट प्लान से। आप उस एरिया का लेआउट प्लान निकालिए, वहां से आपको पता चलेगा रेगुलर शेप है या इरेगुलर शेप है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इरेगुलर प्लॉट रिड्यूस इफेक्टिव यूज। अगर इरेगुलर प्लॉट है, जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है, ट्रायंगुलर है या कुछ है, तो उसका इफेक्टिव यूज हो सकता है। कई बार उसमें कोई स्टिग्मा भी हो सकता है। अगर वास्तु के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से वो प्लॉट इरेगुलर शेप में कवर करता है, जैसे गोमुख है या शेरमुख है, तो उसमें कुछ तरह के वास्तु या स्टिग्मा लग सकता है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू में काफी फर्क आ सकता है।
अब प्लॉट का साइज देखेंगे, प्लॉट का शेप आपने देख लिया, प्लॉट का साइज देखेंगे, मेजर्ड एरिया, आप एरिया को मेजर करेंगे, टाइटल डीड से चेक करेंगे और सेक्शन प्लान से चेक करेंगे। इट इज अ बेस पैरामीटर, बेस पैरामीटर फॉर वैल्यूएशन। अगर एरिया सही होगा, प्लॉट का साइज सही होगा, तभी बेस आपका आपका सही वैल्यूएशन हो पाएगा। टाइटल डीड में कितना दिया है, सेक्शन प्लान में कितना दिया और एक्चुअल में कितना है। प्लॉट बाउंड्रीज, अब प्लॉट बाउंड्रीज आप देखेंगे, फिजिकल डिमार्केशन एंड फेंसिंग, रेवेन्यू मैप एंड साइट सर्वे, प्रिवेंट्स बाउंड्री डिस्प्यूट्स। अब उसकी चारों बाउंड्रीज आप चेक करेंगे, चारों बाउंड्रीज में फिजिकल डिमार्केशन चेक करेंगे, फेंसिंग है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी में कहीं फेंसिंग नहीं है और प्रॉपर्टी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी के साथ मर्ज कर रही है तो कल को डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये आप रेवेन्यू मैप से और सिटी सर्वे से आप चेक कर सकते हैं कि एंक्रोचमेंट तो नहीं है या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में इसमें राइट ऑफ वे तो नहीं है या ईजमेंट तो नहीं है। नाउ लैंड डिटेल्स में आप टोपोग्राफी चेक करेंगे, लेवल, स्लोपिंग और फील्ड लैंड। टोपोग्राफी में चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, आप साइट इंस्पेक्शन करेंगे। साइट इंस्पेक्शन में आपको लेवल प्रॉपर्टी है, लेवल है लैंड या स्लोपिंग है या फील्ड लैंड है, ये आपको आपको पता चल जाएगा। और इसका क्या इफेक्ट होगा, इस अफेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर स्लोपिंग या फील्ड लैंड है तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेवल है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफी फर्क आ जाएगा। सॉइल कंडीशन आप चेक करेंगे, रॉकी है, सॉफ्ट है, ब्लैक कॉटन है या सैंडी है या किसी और तरह की है, या कभी कभी बैकफिल किया होता है, मलबा या मुरम भरा होता है उसमें, वो भी आप चेक करिए। सॉइल टेस्ट इफ अवेलेबल, अगर आपको कोई सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट आपके पास है तो उसको चेक करिए, उससे फाउंडेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा, उसमें फाउंडेशन डेप्थ का पता चलेगा, फाउंडेशन कितनी हैवी करनी पड़ेगी, कितनी हैवी कर होनी चाहिए, इम्पैक्ट फाउंडेशन कॉस्ट। नाउ ड्रेनेज, ड्रेनेज में आप क्या चेक करेंगे, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न आप चेक करेंगे, साइट कंडीशन चेक करेंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा, फ्लड रिस्क असेसमेंट आप उससे कर पाएंगे, ड्रेनेज आसपास के एरिया की ड्रेनेज कैसी है, ड्रेनेज ब्लॉकेज तो नहीं है, काफी वहां पर वाटर लॉगिंग तो नहीं है। एंक्रोचमेंट में क्या चेक करेंगे आप, टेम्पररी या परमानेंट है एंक्रोचमेंट उसने की हुई है, कोई रोड पर एंक्रोचमेंट तो नहीं की हुई है, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो कोई एंक्रोचमेंट नहीं है आपके पड़ोसी की या किसी और की। फिजिकल इंस्पेक्शन से ये चेक हो सकती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट रिड्यूसेस इफेक्टिव लैंड एरिया। अगर उसने एंक्रोचमेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी की है तो लैंड एरिया रिड्यूस हो जाएगा। नाउ लीगल टाइटल एस्पेक्ट में आप क्या चेक करेंगे, ओनरशिप। सबसे पहले आप लीगल टाइटल में ओनरशिप चेक करेंगे। ओनरशिप में क्या क्या चेक करेंगे, आपको ओनरशिप आपकी सिंगल है, जॉइंट है या को ओनरशिप है। कैसे पता चलेगा, सेल डीड पढ़ के, सेल डीड और पार्टीशन डीड। अगर पार्टीशन डीड है या फैमिली पार्टीशन है या सेल डीड है या कन्वेंस डीड है या लीज डीड है, उससे आपको ओनरशिप के बारे में पता चल जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इट डिटरमिन्स मार्केटेबल टाइटल। इससे आपको मार्केटेबल टाइटल पता चलेगा। सिंगल है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और हो सकती है, जॉइंट है तो कुछ और हो सकती है, को ओनरशिप है तो बेचने में थोड़ा बहुत कम या मुश्किल आ सकती है। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ टाइटल। नेचर ऑफ टाइटल में आप देखेंगे फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है या टेनेंटेड है या किस तरह की है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स, आप टाइटल डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसमें लीज होल्ड अफेक्ट वैल्यू, उसका क्या फर्क पड़ेगा, अगर लीज होल्ड है तो उसका वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। अब लैंड यूज देखेंगे आप, लैंड यूज में एज पर जोनिंग लॉ देखेंगे, जोनिंग मैप आप देखेंगे, जोनिंग मैप से आपको पता चल जाएगा उसकी लैंड यूज क्या है। उसका कैसे पता चलेगा, मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लान आप चेक करेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट डिटरमिन्स परमिसेबल यूज। परमिसेबल यूज क्या है उसका, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, मिक्स्ड है, इंडस्ट्रियल है या किस तरह का है, वो आपको जोनिंग प्लान से पता चल पाएगा। एनकम्ब्रेंसेस आप देखेंगे, एनकम्ब्रेंसेस में क्या देखेंगे, ईजमेंट है या राइट ऑफ वे है। अब ईजमेंट में ईसी देखेंगे या साइट इंस्पेक्शन देखेंगे। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आप चेक करेंगे या मौके पर साइट विजिट करेंगे। अगर साइट पर आपको लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी को किसी और की प्रॉपर्टी से रास्ता लग रहा है या इस प्रॉपर्टी में से किसी और प्रॉपर्टी को रास्ता जा रहा है, दोनों केसेस में ईजमेंट हो सकता है, तो इट अफेक्ट्स क्लियर टाइटल। तो ये आपके टाइटल में फर्क पड़ेगा, उस इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑल्सो। लिटिगेशन, अब लिटिगेशन में आप क्या देख सकते हैं, एज अ वैल्यूअर यू आर नॉट अ लीगल पर्सन, लेकिन एज अ वैल्यूअर आप क्या देख सकते हैं, फिजिकल डिस्प्यूट्स देख सकते हैं। विजिबल डिस्प्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, ओनर डिक्लेरेशन आप ले सकते हैं, ओनर से डिक्लेरेशन ले सकते हैं। अगर
कोई प्रीवियस डिस्प्यूट है, कुछ है आसपास से आप पता कर सकते हैं, नेबर से पता कर सकते हैं, आपने रिलायबल सोर्सेज से पता कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर से पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में पता करना मुश्किल होता है, या फिर कोई बताता नहीं है, या आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आप उससे ज्यादा ज्यादा मौके पर पता नहीं कर सकते। तो उस केस में आप ओनर से डिक्लेरेशन ले सकते हैं। उसके उसका रिस्क फैक्टर होता है, कल को प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड निकली तो कल आपके आपकी आपके कॉम्पिटेंसी रिकवरी चैलेंज किया जा सकता है। नाउ बिल्डिंग जनरल डिटेल्स। बिल्डिंग में आप क्या क्या देखेंगे? टाइप ऑफ बिल्डिंग। टाइप ऑफ बिल्डिंग में रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, मिक्स्ड यूज है, मिक्स्ड बिल्डिंग है या किस तरह की। अप्रूव्ड प्लान आप चेक करेंगे, उससे वैल्यूएशन मेथड सिलेक्शन आप उससे ही कर पाएंगे। रेसिडेंशियल है तो अलग मेथड इस्तेमाल होगा, कमर्शियल है तो अलग मेथड इस्तेमाल होगा, अगर मिसयूज है तो किस तरह का मेथड इस्तेमाल होगा, ये आपको चूज करने में हेल्प करेगा। एज ऑफ बिल्डिंग देखेंगे, अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कैसे देखेंगे? कंप्लीशन सर्टिफिकेट से। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी करेंगे, और उसके हिसाब से प्रॉपर बिल्डिंग की असेसमेंट भी करेंगे। बिल्डिंग का एज जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट में लिखा है उससे मिलता जुलता है, ऐसा तो नहीं है सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा है और आपको देखने में प्रिमा फेसाई आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी और एज बिल्डिंग की हो सकती है, और सर्टिफिकेट में कुछ और मेंशन है। फॉर डेप्रिसिएशन, किस लिए चाहिए चाहिए ये एज? डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हमें चाहिए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कॉस्ट अप्रोच से बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन के लिए आपको कॉस्ट अप्रोच के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको एज ऑफ द बिल्डिंग चाहिए। नंबर ऑफ फ्लोर्स, बेसमेंट है, स्टिल्ट है या अपर फ्लोर्स है। सेंक्शन प्लान से आपको पता चलेगा। इससे एफएआर कंप्लायंस आपको पता चलेगा, एफएआर कितना है। ऑक्यूपेंसी स्टेटस आप देखेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, टेनेंटेड है। रेंट एग्रीमेंट देखेंगे, कैसे पता चलेगा? रेंट एग्रीमेंट से। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप ओनर से आप मांग सकते हैं, या फिर लीज एग्रीमेंट मांग सकते हैं, लीज डीड मांग सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप इनकम अप्रोच यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है तो इनकम अप्रोच से अगर आपने वैल्यू देना है तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लीज डीड या रेंट डीड चाहिए। स्ट्रक्चर डिटेल। स्ट्रक्चर डिटेल्स में आपको क्या देखना है? फाउंडेशन में किस तरह की टाइप है, आरसीसी है, स्टोन है, ये कैसे देखेंगे? स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। इससे क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का। सुपर स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? लोड बेरिंग है, आरसीसी फ्रेम्ड है। कैसे पता चलेगा? साइट इंस्पेक्शन करेंगे तब पता चलेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता चलेगी। अगर लोड बेरिंग है तो कितनी लाइफ हो सकती है, अगर आरसीसी है तो कितनी लाइफ होगी, और आगे कितनी उसकी उसके टाइम पीरियड बचा हुआ है, इससे आपको असेसमेंट हो जाएगी। रूफ टाइप। रूफ टाइप किस तरह की है? आरसीसी है, ट्रस है या स्लैब है? कैसे पता चलेगा? साइट इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा ऑफ कोर्स। इससे क्या क्या फायदा होगा? ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी आपको। वॉल्स कैसी हैं? ब्रिक वर्क है, ब्लॉक्स हैं या स्टोन है? फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तब पता चलेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पता चलेगा। नाउ फिनिशेस एंड स्पेसिफिकेशंस। फिनिशिंग में आपको क्या क्या चेक करना है? फ्लोरिंग चेक करना है, मार्बल है, टाइल्स है या आईपीएस है। कैसे पता चलेगा? साइट इंस्पेक्शन से। इससे कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन में फायदा होगा। डोर्स एंड विंडोज में क्या है? डोर्स वुडन है, एल्यूमिनियम है, यूपीवीसी है। कैसे पता चलेगा? विजुअल इंस्पेक्शन से। और क्या फायदा होगा? क्वालिटी असेसमेंट। प्लास्टर एंड पेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कैसा प्लास्टर है, कैसा पेंट है। कंडीशन सर्वे से पता चलेगा। आप जब प्रॉपर्टी में जाएंगे तो कैसी कंडीशन में प्रॉपर्टी है उससे पता चलेगा। इसका फायदा क्या होगा? मेंटेनेंस स्टेटस आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी का। नाउ सर्विसेज एंड एमिनिटीज। वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसे पता चलेगा आपको? म्यूनिसिपल बोरवेल से। इधर म्यूनिसिपलिटी का पानी इस्तेमाल हो रहा है या बोरवेल है, ये आपको कैसे पता चलेगा? यूटिलिटी बिल से। आप उससे बिल लीजिए, बिल से आपको पता चलेगा कितनी कंजम्पशन है और कितने का बिल आ रहा है। दैट मीन्स बोरवेल है या म्यूनिसिपैलिटी का पानी इस्तेमाल हो रहा है। और इससे क्या फायदा होगा? हैबिटेबिलिटी पता चलेगी आपको। सैनिटेशन में सीवर है या सेप्टिक टैंक है, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड से पता चलेगा। और इसके कंप्लाइंस आपको पता चलेंगे, आपके कंप्लाइंसेस बिल्डिंग के पूरे हैं या नहीं। इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या क्या आपने देखना है? वायरिंग टाइप एंड मीटर चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सेफ्टी नॉर्म से। क्या क्या आपको पता चलेगा? रिस्क एंड ऑब्सोलेंस पता चलेगी आपको इलेक्ट्रिकल में। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जो उसकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं या इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो पुराने हैं तो उसकी ऑब्सोलेंस कितनी हो चुकी है, या कितना उसमें डेप्रिसिएशन लगेगी, या ऑब्सोलेंस फैक्टर कितना कंसीडर होगा। लिफ्ट। लिफ्ट में आप क्या देखेंगे? नंबर एंड कैपेसिटी। और क्वालिटी या उस मेक भी देख सकते हैं, किस तरह की लिफ्ट है,
कैपेसिटी किस तरह की है, उसमें कैसे चेक करेंगे, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस रिकॉर्ड से चेक करेंगे, और उसका क्या होगा, वैल्यू एडिशन। क्या फायदा होगा, वैल्यू एडिशन होगा। फायर सेफ्टी में क्या देखेंगे आप, एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे, हाइड्रेंट्स देखेंगे। कैसे पता चलेगा, फायर एनओसी, फायर एनओसी लीजिए, उसमें सारी डिटेल होती है, उसके हिसाब से आप मौके पर चेक कर सकते हैं एक्सटिंग्विशर्स एंड हाइड्रेंट्स। उससे क्या होगा, मैंडेटरी कंप्लायंस। ये आपको मैंडेटरी, लोकल बॉडी के हिसाब से कुछ चीजें मैंडेटरी होंगी, तो वो आपको पता चल जाएगी कि मैंडेटरी कंप्लायंस पूरे हैं या नहीं। अब मेंटेनेंस कंडीशन, मेंटेनेंस कंडीशन में आप सबसे पहले चेक करेंगे फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में क्या है, गुड है, फेयर है या पुअर है, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन से। और इससे क्या पता चलेगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको कितनी लगनी है, ये आपको फिजिकल कंडीशन से पता चलेगी। अब स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस कैसे चेक करेंगे, क्रैक्स है या डैम्पनेस है। कैसे पता चलेगा, साइट ऑब्जर्वेशन से। साइट ऑब्जर्वेशन के बाद क्या फायदा होगा उसमें स्ट्रक्चर चेक करने का, उसमें रिपेयर एंड लाइफ बिल्डिंग की पता चलेगी। रिपेयर कितनी मांगती है बिल्डिंग, और उसकी लाइफ बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी है, ये आपको स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस से पता चलेगा। ऑल्टरेशन से पता चलेगा, ऑल्टरेशन उसने कुछ किया है या नहीं की है। कैसे पता चलेगा, अनऑथराइज चेंजेस से। अनऑथराइज चेंजेस कैसे पता आप नोट करेंगे, अप्रूव्ड प्लान से। अप्रूव्ड प्लान से अगर वायलेशन है तो अनऑथराइज चेंजेस होंगे। अनऑथराइज चेंजेस का क्या फर्क पड़ेगा, लीगल रिस्क होंगे, उसमें आपको डिमोलिशन का रिस्क या दूसरे लीगल रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं बिल्डिंग में। अब मेजरमेंट, मेजरमेंट करते हुए तो आपको क्या क्या चेक करना है, बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया कैसे चेक करेंगे, फ्लोर वाइज। फ्लोर वाइज कैसे, इससे कहां से चेक करेंगे, प्लान वर्सेस साइट। प्लान में क्या दिया हुआ और साइट पर क्या है, ये आपको चेक करना है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यूएशन बेस पे पता, वैल्यूएशन बेस बनेगा इससे। इट विल बी अ बेस फॉर वैल्यूएशन। आपको फ्लोर एरिया के हिसाब से वैल्यूएशन देनी है। आपको एरिया पता नहीं होगा तो आप वैल्यूएशन किस चीज के लगाएंगे, एरिया में रेट किस तरह का, रेट तो आप लगा देंगे, लेकिन एरिया ही जब गलत होगा तो सारी की सारी वैल्यूएशन गलत हो जाएगी ना। नेक्स्ट इज कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कैसे पता चलेगा, यूजेबल एरिया। ये कहां से पता करेंगे, रेरा नॉर्म्स से। रेरा नॉर्म्स को पढ़िए, वहां से आपको यूजेबल एरिया पता चलेगा। यूजेबल एरिया, एरिया का क्या फायदा होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट कंपैरिजन में पता चलेगा। मार्केट कंपैरिजन में जब आप सेल कंपैरिजन करेंगे तो आपको उसके उसका आपको कारपेट एरिया चाहिए होगा। कारपेट एरिया आपको रेरा नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगा। एफएआर यूटिलाइजेशन, इसमें आप क्या क्या चेक करेंगे, कंज्यूम एंड बैलेंस। एफएआर कितना कंज्यूम हो चुका है और कितना बैलेंस है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, सैंक्शन प्लान से। सैंक्शन प्लान होगा, उससे आपको पता चल जाएगा एफएआर कितना इसका परमिसिबल है और कितना इसने कंज्यूम किया है और कितना बैलेंस है। उससे क्या फायदा होगा, आपको डेवलपमेंट पोटेंशियल पता चलेगा, इसमें अभी डेवलपमेंट पोटेंशियल कितना है, इसमें आप कितना और एचबीयू में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना एनवायरमेंटल सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी में आपने क्या देखना है, नॉइस एंड पॉल्यूशन। ये चेक करना है। नॉइस और पॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, साइट सराउंडिंग से। साइट सराउंडिंग करने के बाद आपको ये नॉइस और पॉल्यूशन चेक, एनवायरमेंटल इशू चेक करने का क्या फायदा होगा, मार्केट परसेप्शन आपको पता चलेगी कि इसमें मार्केट कल को सेल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी प्रॉपर्टी को। नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल हैजार्ड्स में आपको क्या क्या चेक करना है, फ्लड, अर्थक्वेक जोन में तो नहीं है, फ्लडिंग जोन में तो नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा वेदर ये अर्थक्वेक जोन में आती है या नहीं आती है। आती है तो कौन से जोन में आती है, जोन 4 में आती है, जोन 5 में आती है, जोन 6 में आती है, या उससे लोअर जोन में आती है, 2 या 3 में। तो उससे क्या फायदा होगा, आपको रिस्क फैक्टर पता चलेगा, अर्थक्वेक यहाँ पर कितना, अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है तो बिल्डिंग के ऊपर आपको कितना, आपको सेफ्टी फैक्टर लगाना चाहिए। नाउ मार्केट एंड वैल्यूएशन इनपुट्स। प्रिविलिंग रेट्स आपको क्या देखना है, कंपेरेबल सेल्स। कंपेरेबल सेल्स के कहां से आप चेक करेंगे, लोकल इंक्वायरी से। लोकल इंक्वायरी करने के बाद आपको कंपेरेबल सेल्स पता चलेंगे। इसका क्या फायदा होगा, आपको मार्केट वैल्यू निकालने में आपको फायदा मिलेगा। मार्केट अप्रोच से अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, लैंड की, ओपन लैंड की या किसी ओपन प्रॉपर्टी की, तो आपको मार्केट वैल्यू लगाने के लिए आपको लोकल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। लोकल इंक्वायरी से आपको कंपेरेबल सेल्स पता चलेंगे। कंपेरेबल सेल्स से आपको असेसमेंट करने में, मार्केट वैल्यू, मार्केट अप्रोच इस्तेमाल करने में आसानी होगी। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई में आपको क्या देखना है, एक्टिव और स्लो मार्केट। मार्केट इज एक्टिव और मार्केट इज स्लो। ये कैसे पता चलेगा, मार्केट स्टडी करके। मार्केट स्टडी करके आपको पता चलेगा वेदर द मार्केट इन द नियर बाय विसिनिटी इज एक्टिव और मार्केट इज स्लो। उसका क्या फायदा होगा, आपको रेट जस्टिफिकेशन आपको करने में आसानी होगी। जब आप सेल कंपैरिजन करेंगे तो जस्टिफिकेशन में आपको आसानी हो जाएगी। ये मार्केट अप्रोच के लिए है।
हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज में क्या आप चेक करेंगे? एग्जिस्टिंग उसका यूज क्या है और पोटेंशियल यूज क्या है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग किस तरह की इस्तेमाल हो रही है और उसका पोटेंशियल यूज क्या है। ऐसा तो नहीं है एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और कमर्शियल एरिया में है बनी हुई है, उसका एग्जिस्टिंग यूज तो रेसिडेंशियल है लेकिन उसका पोटेंशियल यूज बहुत हाई हाई पोटेंशियल की यूज आप उसको कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? जोनिंग एंड मार्केट। जोनिंग लॉज क्या कहते हैं, जोनिंग प्लान क्या कहता है और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इन दोनों से पता चलेगा। उसका फायदा क्या होगा? वैल्यूएशन कंक्लूजन। आपको वैल्यूएशन कंक्लूजन निकालने में आसान होगा। सो फ्रेंड, दीज आर फ्यू पॉइंट्स कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और कैसे चेक करेंगे, उसका वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट होगा, ये हमने इस टेबुलर फॉर्म में करने की कोशिश की है। वैल्यू एज प्रोफेशनल नोट। A site inspection is not merely a physical visit, but a legal, technical, and economic assessment of the property. Any omission may affect accuracy, defensibility, and credibility of the valuation report. अगर कोई भी आप यहाँ पर चीज मिस कर जाते हैं या omission कर जाते हैं, तो it may affect the accuracy of your report, it may affect the defensibility of your report. कल को आपको डिफेंस करनी पड़े अपनी रिपोर्ट किसी भी कोर्ट में या किसी भी लिटिगेशन में या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए या किसी अथॉरिटी के सामने, तो आपके लिए मुश्किल होगी और आपकी क्रेडिबिलिटी भी उससे खत्म होती है। अगर आप कोई चीज यहाँ पर ओमिट हो जाती है, आपसे मिस हो जाती है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है। इसलिए आई रिकमेंड एवरीवन टू go through these inspection checklist points and follow in your report, and these will help you to prepare a sound and credible report in your professional life. So friend, with this I finish this presentation. Thank you very much for listening to me, and please do not forget to like, subscribe and comment our official YouTube channel for more such videos and for getting all related videos in time. If you click on the subscription button, you will get all the videos in time. So thank you very much for listening to me. Goodbye, good luck, keep learning, stay safe.